Good afternoon, everyone. I am Disha Agarwal. I welcome all of you on the behalf of Disha for Success team. Today, we are here to attend a powerful webinar on multidimensional success in our life. My parents will present a powerful webinar, and I feel blessed to be their daughter as they are such a wonderful parent and who are always full of positivity and energy. Welcome. Thank you so much. Thank you so much. She is my daughter and our organization, Disha for Success. First of all, I welcome each one of you. Due to some restriction on Zoom, we are doing YouTube live of this session. Myself, Sanjay Agarwal, and my wife Indu will be joining us for this wonderful session. And I will say, welcome each and everyone who took out time for this wonderful session. Multi-dimensional success in life. We have realized we have many people keep running, working harder and harder for their financial growth and success. But success is not only one part. The reason we took this subject, multi-dimensional success, जिंदगी के हर पहलू में हम एक बेहतर इंसान बने. It includes success emotionally. It includes success in relationship. It includes success in health. It includes success in financial. So once we talk about financial, and am I audible to everyone? Anna, just raise your voice on Zoom participants. Anna, you guys can put your camera on, especially on Zoom participants, so that I can just see your faces. Anna. And we make so thank you so much. Thank you. Wonderful to have you all. I see people joining us in YouTube channel also. We are going live with this YouTube channel. See what I believe. I read somewhere the fish in water is thirsty. So we all have abundance of everything in life. उसके बाद भी अगर हम मिजरी ढूंढ के लाते हैं, प्रॉब्लम ढूंढ के लाते हैं, तो ये इंसान की कलाकारी है कि वो हर चीज में प्रॉब्लम और मिजरी ढूंढ लेता है. सो आज का प्रोग्राम इसी मकसद से रखा गया कि वी वर्क ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. कैन यू मिनिमाइज दिस? सो आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड आगे जा सकते हैं. ओके. So when I say multi-dimensional, it means existing in different dimensions of life. Human being itself is a multi-dimensional. We need to be good in emotionally, physically, academic, career-wise, social, culture, financially and spiritually. हमारे यहाँ पे सक्सेस बोले तो अगर किसी का पैसा अच्छा आ गया है, अच्छा नौकरी मिल गया है, थोड़ा पैसा हो गया तो उसको हम सक्सेस मान लेते हैं. But there is no point in success at one point and failure at another point. So it doesn't make sense that I am a good father, but I am a lousy son. So we will touch different aspect today, so that हम एकदम तो सबको नहीं better कर सकते. We are also learner. We are learning. So, but during the process, whatever we have learned, whatever we have understood in a couple of years, and as a learner, we will share it with you guys, and probably it will help you. It will help us. I see so many HODs who have connected with us. There are people from Management Institute. There are people from universities, from Bangalore University. Thank you. Welcome, sir. And all my business associate. I see a couple of coaches here. So after a session, we'll have a round of question and answer. You'll ask question and we'll share it. Let's make it a interactive session. Fine. So we'll connect these different aspects. Okay. See, this is myself, Sanjay. I was working. My dad was into Indian Air Force, so we lived in a different places. I was born in Hyderabad, brought up in Rajasthan, Punjab, Pathankot, Bangalore, Pune, Goa, Assam. So we've been to different places. In Indian Air Force, the dad used to get transferred after every 4 or 5 years. So हम लोग जगह पे पूरे इंडिया में रहे, तो पूरे इंडिया का भ्रमण हुआ. Then I did my graduation from Bangalore. Then I did my post graduation. And I did my MBA. Then I did my MSc Environmental Sciences.
And then I was a Pakka employee ka beta. I was a Pakka employee and I was an employee son. So I started my career with Bajaj Allianz Life Insurance. Then I was vice president with Bharti Excel Life Insurance. Couple of years back, we realized that we need to do something of our own. We need to do something big. And I could read some few Osho book, and I met Robert Kiyosaki. I realized if you need to do big, you need to create impact. You need to create value. If you want to become financially rich and abundantly rich, you need to give value to the people. So आज से 7 साल पहले I started my career with Bajaj, then Bharti. Indu was working with HSBC. We decided to say goodbye to our job, and we started our own distribution with Ayush certified Ayurveda products. And then we created an organization by name Disha for Success. You just saw my daughter, Disha. Okay, we see so many people, very smart, educated, degree holders, intellectual, working harder and harder but directionless. So we thought, we put a direction. So these are a couple of our program. One of my program, Break the Limit, is very successful. I know we could do training in 32 cities of the country. We have been awarded by Haryana Chief Minister, Health Minister, Employment Minister, Governor of Odisha. We have conducted many other programs. So what I'm trying to tell you, as an employee, हम लोग सिर्फ अपनी आमदनी, अपनी जिंदगी के बारे में सोचते थे, मगर इन 7 साल के प्रोसेस में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस हमारे अंदर हुए और वही हम लोगों के साथ शेयर करते हैं. आज हमारा बिजनेस है 7 स्टेट्स के अंदर, सो हम फाइनेंशियली टेकन केयर है. We created a system. I'm a Pakka student of Robert Kiyosaki. So I believe in creating system. I will be talking about financial. Then I'll cover all this thing. So once we are financially taken care, we have time for other things in life. I started reading books. I met Tony Robbins. I met Robert Kiyosaki. तो उनसे जो सीखा समझा, तो हम लोग हर साल कुछ ऐसे प्रोग्राम करते हैं ताकि हम लोगों को एम्पावर कर सकें. हम एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि जो भी कुछ हमने सीखा वो हम लोगों को आगे दे सकें. This is me and my wife. We both are double postgraduate, have good experience in English and everything. Indu, Anna, I'm blessed to have her in my life. Anna, she's an awesome friend. And Robert Kiyosaki, he has written 3 books with Donald Trump. So speeches why you should be rich. Though India people talk about कि अगर हम गरीब हैं तो अच्छी बात है क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है. So most of the people are poor because they think government will take care of them. So it's much easier to be poor than to be rich. So most people adopt that way. Right? Anyways, he is Robert Kiyosaki and Kim Kiyosaki with Sanjay Agarwal and Indu Agarwal. He is a famous author of book Rich Dad and Poor Dad. See, why I'm telling you, हम दोनों पक्का employee parents employee बच्चे थे, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था. But today, we have much bigger cars and much luxurious cars than कभी हम सोचते थे उतने का घर हो. So why I'm trying to tell you all this? If an ordinary person, an employee like me, over a period of 7 years can create an empire and can create a positive impact and have a team of more than 1,600 doctors, associated with us across country, we can do wonders. Okay. Now we have been conducting programs. These all my program are mostly free of cost. This is not my source of income. Okay, I have my business Up and Life, automated cash flow. When I'll talk about system, I'll tell you most of the people are trained to work harder and harder, and they keep working for the rest of the life. I have been taught to create systems. Okay, when system works, you can sit and relax. But if you are intelligent, like most of the people, you'll keep working for the rest of your life. Okay, so these are the thought process will change. We did this awesome program on relationships called Rapta. Okay, and a very thorough gentleman, Mr. Vijay Vardhan, he's an IAS officer cadre. He also joined us, and we talked about different aspects of life, relationship with parents, relationship with kid, and everything. Okay, this is our media coverage. Our articles, Hindu articles on health. My wife's Hindu programs on TV, Life is Beautiful, Zindagi Khoobsurat Hai. You will see a couple of newspaper cuttings. We are working in the field of preventive healthcare, awareness, entrepreneurship development, empowering people. And we have been promoting Ayurveda also. So this is my prime business. Okay.
And then we, around 4 or 5 years back, we started Disha for Success as a training arm. And we are conducting workshops in 32 cities in country and helping and inspiring people. I personally visit around 18 colleges and university, and my subject is entrepreneurship. And my favorite subject is profits are always better than salaries. Okay. So this is what we have been teaching, apart from being healthy and everything. I think I should tell Indu to join us. And she was a banker by profession, and I was a Pakka insurance guy. And she'll tell her about her work in the health sector. Hi, good afternoon, everyone, and I welcome all of you. I could see many people are attending our programs on YouTube Live, and there are few people here on Zoom. I'm getting messages regularly that they are unable to connect few people on Zoom. So for those people who are unable to connect our program on Zoom, it is already there live on YouTube. So as Sanjay ji already introduced, that we were simple employees from very, very ordinary family, but we had a dream, and we had a dream to do something marvelous and to do something different, and that inspired us to do something bigger. And I'm grateful and I'm blessed to have a spouse like Mr. Sanjay Agarwal, जिन्होंने मुझे काफी inspire किया, and he always used to say कि इंदु हमें life में कुछ different करना है. This 9 to 5 job is not for us, but we had no option. We had limited finances as we were from a very, very normal middle class family, and we were struggling hard for our income. So Sanjay ji decided to set up his own business, and with the grace of God, we could do fantastic in our preventive healthcare business. After that, even I resigned my job. I started writing articles in magazines, newspapers, and we have been widely recognized. आज मैं दिल से उन सब लोगों का स्वागत करती हूँ जो आज अपना प्रीशियस समय निकाल करके हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं. और मैं आपको अश्योर करती हूँ अगले 1.5 से 2 घंटे जो आप इस प्रोग्राम में रहेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू अपनी लाइफ में 100% ऐड करके जाएंगे. I always say life is beautiful. So how can we make our life beautiful? We will share, in case we work on multi-dimensional aspects of our life, then only we can make our life beautiful. अगर कोई भी एक चैप्टर हमारी लाइफ से मिसिंग हो गया, it will become a life of struggle. What inspired us to do this program? You know, few days back, I was organizing a program on the science of well-being. और जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही थी, उसी वक्त एक बहुत सैड न्यूज आया कि दैट सुशांत, अ वेरी रिनाउंड एक्टर, उन्होंने सुसाइड कर लिया आउट ऑफ डिप्रेशन. और उस वक्त संजय जी और मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, बिकॉज टीवी पे सब लोग न्यूज देख रहे थे, बहुत सारे लोग इसके बारे में बातें कर रहे थे कि इंडिया में किस तरीके से बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं. कोरोना क्राइसिस के चलते भी बहुत सारे लोगों की इनकम अफेक्ट हुई, बहुत सारे लोग मेंटली डिस्टर्ब हुए और काफी सारे परिवारों पे उसका असर पड़ा. तो हमें लगा ऐसे में जहां हर तरफ नेगेटिविटी है, क्यों ना हम कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, बिकॉज जो हमारे अंदर जाता है वही बाहर निकलता है. अगर हर वक्त नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव सुनेंगे, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में भी पूरे चांसेस हैं कुछ ना कुछ नेगेटिव हो जाएगा. सो दिस वेबिनार इज जस्ट एन एफर्ट to create some positivity, and trust me, if we all join hands together, we will have a beautiful life. Because हम खुद क्या करते हैं उससे ज्यादा मैटर करता है हमारे साथ साथ हम अगर अपने आसपास के लोगों के लाइफ में भी कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि जीवन हमारा भी अच्छा होगा और हमारे आसपास के लोगों का भी अच्छा होगा. एंड आई एम ग्रेटफुल टू द लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट मैगजीन, जिन्होंने मेरे इस एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया और समय समय पर उन्होंने मेरे आर्टिकल्स को पब्लिश किया. ये सब हमारे जीवन में कैसे हो पाया? We understood few cosmic laws: law of caring and sharing, law of giving, principle of duality, feeling versus thinking, winner's mindset versus mindset, wealthy mindset versus poverty mindset. So आज इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, एंड आई एम श्योर कि यहाँ से आप लोगों को काफी सारी चीजें ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो चीजें हमें पता है
क्या हम उसे अपने जीवन में एग्जीक्यूट कर रहे हैं? सो माय डियर फ्रेंड, दिस वेबिनार इज नॉट अबाउट नॉलेज. आई थिंक नॉलेज इज एवरीवेयर. यूट्यूब पे हजारों वीडियोस हैं जिन्हें हम वॉच कर सकते हैं. देयर आर एन नंबर ऑफ बुक्स. लेकिन आज संजय जी और मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करेंगे कि उसे एग्जीक्यूट कैसे करें, बिकॉज देयर इज नो डेप्थ ऑफ नॉलेज. लेकिन मान लीजिए मेरे पास नॉलेज है कि मुझे ये काम करना है, लेकिन मैं उस काम को करती ही नहीं, तो मेरी नॉलेज होना या ना होना बिल्कुल बेकार है. हर इंसान को मालूम है कि रिलेशनशिप्स को अच्छा रखना चाहिए, फिर भी हिंदुस्तान के 80% घरों में लड़ाई है. हर इंसान को पता है कि जीवन में हमें पैसा कमाने के लिए डेली सुबह उठ करके एनर्जी के साथ काम करना चाहिए, फिर भी 80% ऑफ द फैमिलीज दे आर स्ट्रगलिंग. हर इंसान को पता है कि इमोशनल वेलनेस, हमें जीवन में खुश रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम जीवन में खुश नहीं रहेंगे तो बहुत सारी बीमारियों को बुलावा भी देंगे. लेकिन फिर भी बहुत सारे चेहरों पर फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारे चेहरों पर गुस्सा है, और सिर्फ वही चीजें हम लोगों की लाइफ में भी थी, उन्हें हमने कैसे बदला, क्या किया कि हमारा जीवन बदल गया. आज वही चीजों के बारे में हम आपके साथ बात करेंगे. पावर ऑफ बिलीफ. अगर हम जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं, सबसे पहले हमें अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना पड़ेगा. सब लोग फ्रूट्स तो बदलना चाहते हैं जीवन में, लेकिन वो अपने बीज बदलना नहीं चाहते. अगर हम लोग आम के पेड़ आम खाना चाहते हैं तो हमें करेले के बीज लगाने से आम नहीं मिलेगा. अगर हम आम के बीज लगाएंगे तभी हमें आम खाने को मिलेंगे. लोग बीज तो लगाते हैं करेले के और खाना चाहते हैं आम. दैट इज नॉट पॉसिबल इन लाइफ. उनका बिलीफ सिस्टम खुद कहता है कि हम लोग मिजरेबल लाइफ जिएंगे, हम अच्छी लाइफ जी पाएंगे कि या नहीं जी पाएंगे. उनके खुद के जीवन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. क्या पैसा हमें मिलेगा? क्या डू वी डिजर्व मनी? जब इस तरह के क्वेश्चन मार्क हमारी खुद की लाइफ में है, तो उसके बाद जब हमारा बिलीफ सिस्टम ये नहीं मानता, बहुत सारे लोग आप देखिए ढेरों बीमारियों से घिरे हुए हैं. रीजन बीइंग उनका बिलीफ सिस्टम ये मानने को तैयार नहीं है कि हम हेल्दी रहना चाहते हैं. पिछले लगभग 7 years में आई वर्क विद ऑलमोस्ट 1600 डॉक्टर्स, जिनके साथ मेरा ऑलमोस्ट हर चौथे 5वें दिन पर्सनल इंटरेक्शन होता है. मैं देखती हूँ कि जब मैं डॉक्टर से भी इसके बारे में बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि जिस पेशेंट का बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव है, जो पेशेंट फेथ के साथ मेडिसिन लेता है, वो पेशेंट जल्दी जल्दी ठीक होता है. सो बिलीफ प्लेज अ वेरी पावरफुल रोल इन आवर लाइफ. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू चेंज दिस बिलीफ सिस्टम, हाउ दिस बिलीफ सिस्टम इज डिजाइन. ये बिलीफ सिस्टम जो हम वर्बलाइज करते हैं, जो हम सुनते हैं, जिस तरह का इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाता है, हमारा ये बिलीफ सिस्टम डेवलप होता चला जाता है. और जब तक हम अपने इस बिलीफ सिस्टम को हथौड़ा मार मार के चेंज नहीं करेंगे, हमारे जीवन में कुछ भी बदलने वाला नहीं है. संजय जी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से हमारे माइंड की कंडीशनिंग होती है, किस तरीके से हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है. सो अगेन आई वुड लाइक टू इनवाइट संजय जी, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग हमारे लाइफ में काम करती है. थैंक यू. अभी आपने एक ट्री देखा जिसमें तो अगर हम चाहते हैं कि जिंदगी के फ्रूट्स बदलें तो हमें सीड बदलने पड़ेंगे. विद द सेम सीड यू विल कीप ऑन गेटिंग डिफरेंट रिजल्ट. तो इस इमेज में आप देखेंगे कि वन सेकंड, एवरीवन वांट्स टू चेंज द रिजल्ट, बट रिजल्ट कैन नॉट बी चेंज विदाउट चेंजिंग एक्शन, एंड एक्शन कैन नॉट बी चेंज विदाउट चेंजिंग हाउ यू फील अबाउट इट, एंड हाउ डू यू फील व्हेन हाउ यू थिंक अबाउट इट. तो पहले हम एक सोचना शुरू करते हैं, उसके हिसाब से हम फीलिंग आती है, और उसके हिसाब से हम एक्शन लेते हैं, और उसके हिसाब से रिजल्ट आता है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग, मैंने आपको पहला लाइन बोला, फिश इन वाटर इज थर्स्टी. भगवान ने हमें सब कुछ दिया, ये सुख, समृद्धि, वैभव, लग्जरी, सब कुछ इंसानों के लिए है. फिर भी इंसान इससे दूर है और अपनी कलाकारी से जवानी से बुढ़ापे तक मेहनत भी कर रहा है और फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है. You know why? Let's understand. With same seed, we will keep on getting the same result. So our past programming we need to change. For example, आप लोग हमारे पास आए मिलने
और आपको प्यास लगा है, आप पानी पीना चाहते हैं, आपको यू आर थर्स्टी, ओके, सो आपको लग रहा है कि मेरे को एक गिलास पानी मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा, तो आपके थॉट्स में क्या आया, एक गिलास पानी, ओके। अब आप आपके पूरे थॉट प्रोसेस में सिर्फ ये है कि एक गिलास पानी, अगर मुझे एक गिलास पानी मिल गया तो मजा आ जाए, क्योंकि मकसद क्या है, मुझे अपनी प्यास बुझानी है। अगर आज हमारा मकसद ये हो जाए, आज हमारा मकसद ये हो जाए कि हमें पूरे इंडिया की प्यास बुझानी है, आई नीड टू डू समथिंग सो दैट आई कैन सर्व एंटायर कंट्री और एंटायर स्टेट। आप कुछ भी सोचेंगे मगर आपके माइंड में इस बार ग्लास नहीं आएगा, आपके माइंड में समुद्र आएगा या पाइपलाइंस आएगी। सो अल्टीमेटली एवरीथिंग मैटर्स कि हम सोचते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा बोलता हूँ नो, वेल्थ क्रिएशन इज वेरी वेरी इजी, कंफर्टेबल। आई डोंट नो, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, क्योंकि हमारा स्कूल सिस्टम, हमारा कॉलेज, हमारा यूनिवर्सिटी, हमारे टीचर्स, हमारे रिलेटिव्स हमको सब यही सिखाते हैं कि आपका एग्जिस्टेंस का रीजन ये है कि तुम ग्रेजुएट होकर निकलोगे और कोई नौकरी करनी है तुम्हें। You have to become somebody's नौकर to live your rest of your life. We have been trained and groomed like that. So हमें लगता है कि एक नौकरी मिल जाता है तो लाइफ में मजा आ जाता है। ये क्यों है? ये हमारी प्रोग्रामिंग है। हमारे थॉट्स कहाँ से आते हैं, है ना, कि है ना, मतलब नो व्हाई, बिकॉज आई बिलीव हम ऑलरेडी, हमारे थॉट प्रोसेस चेंज हुए, ये घटना घटी कोरोना की। सो ऑलरेडी साल के 6 महीने चले गए हैं, एंड इफ यू वांट टू क्रिएट ए न्यू वर्ल्ड इन कमिंग नेक्स्ट 6 मंथ, वी नीड ए डिफरेंट माइंडसेट। नो, हम जो भी रिजल्ट लाइफ में ले रहे हैं, जो भी चीज हमारे साथ हो रही है, इट्स ए रिजल्ट। वेल्थ इज ए रिजल्ट, योर करियर इज ए रिजल्ट, योर इलनेस इज ए रिजल्ट, इट्स बेसिकली ए फीडबैक। हम जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट है। सो इफ वी आर नॉट गेट, वो कहते हैं ना कि अगर आप वो फसल काट रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, तो देखो कौन सी फसल बोई थी, है ना। सो वी आर कटिंग क्रॉप व्हिच वी हैव नो sown the cup of this thing. So अगर हम चाहते हैं कि रिजल्ट चेंज हो तो हमें अंदर चेंज करना पड़ेगा। मैंने इसका एग्जांपल देता हूं। आप लोग ऑफिस में हैं और एक प्रिंट आउट लेते हैं, तो आप देखते हैं कि एक स्पेलिंग मिस्टेक है। स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप प्रिंट आउट लेते हो और उस स्पेलिंग मिस्टेक को उस प्रिंट आउट पे ठीक कर देते हो और बोलते हो दोबारा प्रिंट आउट लेके आओ। अगेन प्रिंट आउट आता है तो फिर सेम स्पेलिंग मिस्टेक एग्जिस्ट, फिर आप उस प्रिंट आउट को क्लियर करते हो, फिर नेक्स्ट प्रिंट आउट। वो जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो सिस्टम में है। बाय इरेजिंग द स्पेलिंग ऑन द पेपर, the system doesn't get corrected. So most of the people with the same belief, same thought process, keep on doing the same thing and expect different result. Okay, so सबसे पहले हमें अपनी पास्ट प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी, whether it is about our health, whether it is about relationship, whether it is about abundance. For example, since I'm going to talk about money today, Indu requested me to talk about money. I'm from a very very simple family. I came to Chandigarh, on a scooter, and I used to stay on rented accommodation with 1,000. Today, with God blessing, we have created immense properties in the city, and I've created system which give me automated cash flow, so that whenever I'm free, I read books, I travel, and I talk to people. Okay, so I feel good and blessed, so that I can talk to you. मगर सोचने वाली बात ये है, अगर हम एक इंसान इतना कुछ कर सकता है जिंदगी में, फिर भी ज्यादातर लोग एक मीडियोकर लाइफ को क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्यों, जब हम इतने कलाकार हैं, इतनी अबंडेंस है, तो हम क्यों नॉर्मल सेटल होते हैं? क्यों इतने सारे लोग अपनी इतनी कमाल की जिंदगी ऐसे ही हफ्ते वीकेंड में निकालते जाते हैं? व्हाई, है ना? व्हाई सो मेनी पीपल कीप स्ट्रगलिंग एंटायर लाइफ फॉर मनी, है ना? और कुछ लोग होते हैं जो कमाल की जिंदगी जी रहे होते हैं। इज इट लक, गुड लक, बैड लक, या थर्मोस्टेट? अभी सपोज मेरे रूम में, मेरे ऑफिस में 1.5 टन का एसी है, मैं कितनी भी चला लूं उसका थर्मोस्टेट उतना ही है। तो अगर मुझे ज्यादा ठंड चाहिए तो मुझे 2 टन का, 2.5 टन का, 5 टन का एसी चाहिए। इसी तरह से हम लोगों का एक थर्मोस्टेट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू टॉक अबाउट वेल्थ और यू टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग, मैं हमेशा अपनी टीम को, लोगों को हर सेशन में एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए बहुत बारिश हो रही है और हमने एक ग्लास रख दिया, ओके, और थोड़ा पानी गिर रहा है और एक दिन बाद वो ग्लास भर गया, हम ग्लास को अंदर ले आए, हमें कितने ग्लास पानी मिल गया? 1 ग्लास पानी मिल गया। मेरे दोस्तों, क्या बाहर पानी की कमी थी? नहीं। तो इसी तरह से इस धरती पे दौलत की कमी नहीं है। क्या पता हम ही छोटा ग्लास और छोटा सॉफ्टवेयर लेके घूम रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करनी है। अब ये प्रोग्रामिंग कहां से आई है? स्कूल से।
पेरेंट्स से। आप बचपन में क्या सुनते थे पेरेंट्स से पैसे के बारे में? Whenever पेरेंट्स, आपके पापा मम्मी पैसे के लिए बात करते थे, वो क्या बातें करते थे? क्या बहुत है, खर्च ही नहीं हो रहा, कैसे करें, कहाँ इन्वेस्ट करें? या ये डिस्कस करते थे ये महीने में कैसे मैनेज करेंगे, अगली बार किसी का बर्थडे होगा तो कुछ चीज लाएंगे, है ना? वी आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, सो आई अंडरस्टैंड हाउ 90% पीपल थिंक अबाउट मनी. सो वहां से हमारा प्रोग्रामिंग शुरू हो गया, है ना? सो फर्स्ट थिंग आई से, वेदर इज लाइफ, वेदर इज अबाउट सक्सेस, कि ना सक्सेस कैसे होते हैं, few lucky get successful. No, it's not like that. No, there are formula for everything. There are formula for good health, there are formula for success, there is formula for wealth creation, and formulas don't care who applies them. If I do 3 into 3, it will become 9. If you do 3 into 3, it will become 9. So we just need to understand few basic formulas and implement. I'll just talk about our past programming. अगर हम अलग तरीके से सोचना शुरू करेंगे और एक कॉन्शियस डेलिब्रेट एफर्ट हमें करना पड़ेगा कि वी विल टॉक ओनली अबाउट, वी विल फोकस ओनली ऑन थिंग्स व्हिच वी वांट इन लाइफ, नॉट फोकस ऑन द थिंग्स व्हिच वी डोंट वांट इन लाइफ. सी, अगर एक इंसान की फितरत है, सपोज यू हैव ए कैविटी, ओके, यू हैव वंडरफुल 32 टूथ्स इन ईयर, अगर एक दांत में कैविटी है ना, तो पूरे दिन आपका फोकस, आपकी टंग वहीं जाएगी जहां पे कैविटी है. So we as a human have been trained to look, to crib, to cry about something what we don't have, but we don't celebrate, we don't appreciate what we have. तो ये छोटी सी बात एक बता रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा फर्क आएगा. I cannot change everyone in one session or something like that, but I will just give you certain guidelines. शायद हम लोग we keep connected, we keep sharing, I keep learning from you guys, and हम थोड़ा अलाइन करते रहेंगे. तो ये प्रोग्रामिंग चेंज होगी, स्कूल की, कॉलेज की, फिर फैमिली की, फिर कुछ इंसिडेंट्स हुआ होगा कभी, ना. तो जब हम अपनी प्रोग्राम, एंड हाउ प्रोग्रामिंग विल गेट चेंज, इट इज नॉट लाइक ए शर्ट आई विल चेंज, इट इज नॉट लाइक ए कार आई विल चेंज, इट इज अ माइंडसेट, एंड इट इज नो टेक्नोलॉजी. अभी कोई ऐसा डेवलप नहीं हुआ है कि मैं माइंड खोलूं और एक सक्सेसफुल आदमी का माइंडसेट कर दूं. माइंडसेट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, माइंडसेट ट्रांसप्लांटेशन डजंट हैपन लाइक दैट. सो आई नीड टू चेंज माय एसोसिएशन, आई नीड टू रीड बुक्स, you know, I need to attend workshop, seminar like this. अपने अंदर पॉजिटिविटी डालते रहो. Suppose there's a tub full of black paint, now you put one jug of white paint, no difference will be seen. You'll keep pouring, you'll keep pouring 10 times more white paint, then that black paint will be gone. So same with the positivity. So you programming yourself, धीरे धीरे आपके thought process, you come out as a winner. You know कि you are responsible for everything. When I think कि I am responsible for everything, तो कमाल की चीज हो जाती है. कमाल की चीज ये हो जाती है, you stop blaming others. When you stop blaming others, तो बचता कौन है? I myself. So when I keep focusing and improving on myself, who get better? I get better. Okay. So I cannot change the world. I cannot change scenario. I cannot stop Corona for coming. I cannot stop financial crisis for coming. But the only thing is I can prepare myself. Okay. Another thing which I really want to talk here is uncertainty. We want to be certain. Job मिला तो कितना पैकेज मिलेगा, काम किया तो क्या गारंटी है, क्या सिक्योरिटी है. No, I have understood. मैंने ये प्रोग्रामिंग भी चेंज किया तो we can live a better life. हर चीज में सर्टेनिटी ना ढूंढे. Uncertainty is life. See, there something is certain. Suppose I'm talking to you through laptop. It is certain. It is a laptop. This is a table. Okay. This is mobile. Okay, it is certain, they cannot change. But living things are uncertain. A tree can take any shape, a plant can take any shape, a animal can take any shape. So when you are certain about something, it means that thing is dead, is not alive. So whenever we talk about uncertainty, why we have to consider it as something negative? अरे कुछ कमाल भी तो हो सकता है. Uncertain है ना भैया, हमको ही नहीं पता. It's just that we are unaware of it. So when we are unaware of it, why it has to be negative only? We didn't knew that we can talk to Zoom with so many people. We didn't knew YouTube can do so many wonders. We didn't knew that you can transfer money through mobile. Okay, so why we have to always link uncertainty with negative notions? Okay, so we change our books, we change our association, we keep reading books. Which I have changed. I have started reading Robert Kiyosaki,
and other people so that we understand, right? So इसी तरह से we make some choices in life. We realize that if we want to bring happiness, changes in life, we need to change our belief. Indu was talking about belief system. She draw a tree. Okay. See, I always ask this question. Okay, हम सुबह शाम struggle कर रहे हैं. Why so many people work harder and harder for wealth? Dissatisfaction. If you are dissatisfied, no, it is a good. But if you are misinformed, it is bad for rest of your life. Dissatisfied, look at them, I'm very dissatisfied. Yes, dissatisfaction is the point where you realize that you need to bring some change in life. Good, you are dissatisfied. Awesome. At least you now know that you need to bring some change. I am scared if you are satisfied with a mediocre life. That is more painful. And the pain is you don't know about it. So I believe that growth and willingness to change, different thing. If you have the same belief system, same mindset, and you keep doing the same change, same action, nothing will change. Okay? वो कहते हैं ना कि you must have listened to a story. A man went to a shop. उन्होंने देखा वहाँ पे डॉग बैठा है, वो थोड़ा थोड़ा रो रहा है, ट्रिप कर रहा है, ये हो रहा है वो. तो वो बोला यार ये रो क्यों रहा है? ये कल भी आया था, तब भी रो रहा था, आज भी रो रहा है ये. तो उसका जो ओनर होता है शॉप की से भाई साहब ये जहाँ बैठा है ना वहाँ पे कील है, इसको चुभ रही है. तो आदमी बोलते वेरी स्ट्रेंज, फिर ये चेंज क्यों नहीं करता? वो बोल रहे नहीं इतना भी ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, इसको आदत पड़ चुका है. सो वी डोंट चेंज, वी वेट फॉर समथिंग टू हैपन. अभी के हम कोई तूफान आने का वेट करते हैं तब हम चेंज होते हैं. सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि लाइफ ऑफर चॉइसेस, ये हमारे ऊपर हम क्या चूज करते हैं. सो फर्स्ट चेंज आई थिंक आई सजेस्ट इज इंस्टेड ऑफ कंप्लेन, ब्लेम, क्रिटिसाइज, वी शुड लव, empower and appreciate people. So one is our programming thoughts. जब हमने सोचने का तरीका बदल दिया तो हमारा एक्शन बदला और हमारी जिंदगी में रिजल्ट चेंज होने लग जाएंगे. मगर अगर हम सिर्फ रिजल्ट चेंज करने की कोशिश करेंगे, by remaining the same person, it will very difficult to get different result. But if you focus on changing yourself, 100% your result will change. So I'll call Indu to talk about emotions and your physical health, and I'll come back and talk about financial wealth. Okay, thank you guys. Good afternoon once again. और जैसे कि संजय जी ने अभी बताया प्रोग्रामिंग एंड बिलीफ सिस्टम के बारे में, तो कुछ चीजें जो हमें लाइफ में समझ आई और हमने चेंज किया. जब आई वॉज वर्किंग फॉर HSBC बैंक, कुछ भी गलत हो जाता था तो लगता था कि कोई तो है जिसे कंप्लेन कर दें, ब्लेम करें, क्रिटिसाइज करें, और लगता था कि यही लाइफ है. और जैसे कुएं के मेंढक की तरह, मान लीजिए आई वाज गोइंग टू HSBC एट 9 o'clock, 5 बजे तक वही मेरे 100 कुलीग्स, उन्हीं के बीच की मेरी जिंदगी. मुझे लगता था बस दैट इज इट, शायद इसके बाद लाइफ में कुछ और है भी कि नहीं. लेकिन जब से 7 years बैक हमने लोगों के साथ मिलना शुरू किया, अपने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने शुरू किए, वी रियलाइज कि कंप्लेन करने से, ब्लेम करने से, क्रिटिसाइज करने से आपको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आप लोगों को एम्पावर करेंगे, जितना भी आता है, जो भी आप दे सकते हैं, जस्ट देने की भावना तो रखिए. प्लीज गिव, स्टार्ट एम्पावरिंग. मैं नहीं कहती कि आप लाखों करोड़ों लोगों को एम्पावर करें, एटलीस्ट कुछ लोगों को जो कह सके कि यस दिस इज द कपल जिन्होंने हमारे जीवन में डिफरेंस क्रिएट किया. लव, किसी को ब्लेम करना कितना आसान है, लेकिन उसकी गलती को सुधार के उसको फिर भी प्यार करना, आई थिंक दिस रिक्वायर्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी. सो ब्लेम करना बहुत आसान है. जो लोग आसान काम ढूंढते हैं वो ब्लेम करते हैं, और जो लोग मुश्किल काम ढूंढते हैं वो प्यार करते हैं. बिकॉज लव, प्यार करना, लव इज सच अ ब्यूटिफुल इमोशन. लेकिन पीपल मेक लव अ बॉन्डेज. They do conditional love, कि अगर कोई ऐसा करेगा तभी हम प्यार करेंगे. I think love is always unconditional. Love unconditionally, आपका जीवन खुद ब खुद सुंदर हो जाएगा. Appreciate people. We are not perfect. We all are unique and different. Nobody is perfect. We all have share of Duryodhan within us. कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र हूं. कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने जीवन में कभी कुछ गलती नहीं की. तो जब हम परफेक्ट हैं ही नहीं, तो दूसरों में कमियां ढूंढने का मतलब ही क्या? मुझे लगता है
अगर आप किसी के अंदर अप्रिशिएशन, किसी के अंदर अच्छी क्वालिटी देख करके आप उसे अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो आपको उसे क्रिटिसाइज करने का भी कोई हक नहीं है। मुझे लगता है जब हम दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं तो हम ये बता रहे होते हैं बस हम ही परफेक्ट है, बाकी सब लोग इम्परफेक्ट है। अप्रिशिएट, ये सोचिए क्या मैं परफेक्ट हूं? क्या मैंने कभी जीवन में कोई गलती नहीं की? अगर की है, यस, तो क्या मैंने खुद को माफ किया? यस, तो क्या हम दूसरों को माफ कर सकते हैं? लर्न टू फॉरगिव, लर्न टू अप्रिशिएट एंड योर लाइफ विल बिकम पावरफुल। सो संजय जी और मैंने अपने जीवन में क्या चेंज किया? कंप्लेन करना छोड़ करके लोगों को एम्पावर करना शुरू किया। टुडे वी हैव अ पावरफुल टीम इन 7 स्टेट्स। आज शायद संजय जी और मैं कोई बहुत पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है और हम बनना भी नहीं चाहते। हमारा मकसद है खुद अपने बिजनेस को अच्छे लेवल पे लेकर के जाना और बहुत सारे लोगों की मदद करना। बिकॉज मोटिवेशन डजंट लास्ट लॉन्ग, इट इज जस्ट लाइक फूड। अगर मैं हर रोज किसी को मोटिवेट करूंगी, शायद वो लोग जब तक मैं उनके सामने हूं वो मोटिवेट हो जाएंगे, पर अगर मैंने उनको उनके जीवन का मकसद रियलाइज करा दिया, उसके बाद मुझे उन्हें जीवन में कभी मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी हमें जीवन में अपना मकसद समझ आया तो आज शायद हमें बाहर से किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। सुबह उठ करके हमें पता होता है कि व्हाट वी हैव टू डू विद लाइफ, हमारे जीवन का मकसद क्या है। तो सबसे पहला जीवन में हमने एक चेंज किया, कंप्लेन, ब्लेम, क्रिटिसाइज अपने जीवन से निकाल दिया। जैसा कि संजय जी ने कहा, टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ हमारी वजह से, कुछ गलत हुआ हमारी वजह से, अगर हम इस एटीट्यूड के साथ अपने जीवन को जिएंगे, सो डेफिनेटली वी विल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लाइफ। इमोशंस, आज आप देखिए छोटे छोटे 9th क्लास के बच्चों को स्ट्रेस है, 6th क्लास के बच्चों को स्ट्रेस है, उनकी मदर्स को स्ट्रेस है, उनके पेरेंट्स को स्ट्रेस है, टीचर्स को स्ट्रेस है। मुझे लगता है कि देश में 99% लोगों को या रादर 100% लोगों को स्ट्रेस है। अब मेरा ये सवाल है, इज स्ट्रेस गुड और बैड? क्या स्ट्रेस लेना अच्छी बात है कि बुरी बात है? मुझे तो लगता है बिना स्ट्रेस के जीवन में कुछ होता ही नहीं। मुझे सिर्फ अपना एक छोटी सा इंसिडेंस याद आता है कि हम लोग के पेरेंट्स हमें कहते थे बेटा पढ़ाई करो। हम पूरे साल बुक को याद करने की कोशिश करते थे, बड़ा समय लगता था उसे याद करने में, लेकिन पेपर से पहले दिन 4 से 6 घंटे में पूरी किताब याद हो जाती थी। अगर यानी माइंड पे प्रेशर था, स्ट्रेस था, अर्जेंसी थी, तो वो काम चुटकियों में हो गया, जो काम शायद हम पूरे साल में भी नहीं कर पा रहे थे। कई सारी चीजें मैंने जीवन में सीखी कि अंडर स्ट्रेस, अंडर प्रेशर हम लोग बहुत बढ़िया काम कर पाते हैं, अंडर अर्जेंसी भी हम लोग बहुत बढ़िया काम कर पाते हैं। हम उस काम को इफेक्टिवली करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। अब जब मैं इमोशंस की बात करती हूँ, स्ट्रेस की बात करती हूँ, आज इस चीज के बारे में हम थोड़ा इन डेप्थ बात करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इंदु जी जिस तरीके से आप अपने जीवन को, आपके चेहरे पर कभी हमें परेशानी नजर ही नहीं आती, ऐसा कैसे होता है? तो मैं आज अपने लाइफ से कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगी जिन्हें मैंने अपने जीवन में अपनाया, एंड आई कैन ऑलवेज लिव अ फैंटास्टिक लाइफ। एटलीस्ट मैं कुछ लोगों के लिए, मेरा जीवन वार्निंग नहीं है, माई लाइफ इज एन इंस्पिरेशन। तो मुझे लगा ये जितने तरह के चेहरे आज हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारा कुछ हम सबके साथ होता है। एंगर, डिप्रेशन, सैडनेस, हैप्पीनेस, आई थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ। लेकिन ये स्ट्रेस किस बला का नाम है, आज हम इससे जानते हैं। जीवन में स्ट्रेस 2 तरह का होता है। एक स्ट्रेस वो जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने में हमारी मदद करता है, और दूसरा स्ट्रेस होता है कि खाम खा का स्ट्रेस, यानी कि वो स्ट्रेस लेने से हमारे जीवन में कुछ बदलाव आने वाला नहीं है। अब जो लोग स्ट्रेस लेते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जो लोग स्ट्रेस लेते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, वो स्ट्रेस उन्हें अचीवर बना देता है। लेकिन जो लोग स्ट्रेस लेते हैं कि पड़ोसी का जीवन कैसा है, मेरे दोस्त का जीवन कैसा है, उसका जीवन अच्छा क्यों चल रहा है, लोग आज अपने दुख से दुखी नहीं है, लोग दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। मतलब कि उनको इस बात में परेशानी नहीं है कि मुझे क्या परेशानी है, उन्हें इस बात की परेशानी है कि दूसरे लोग खुश कैसे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एटीट्यूड को हमें चेंज करना पड़ेगा।
क्यों ना हम अपना पूरा का पूरा जीवन खुद को बेहतर इंसान बनाने में लगा दें। अब बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, वो कहते हैं इंदु जी हमारा तो टाइम ही पास नहीं होता, अगर हम थोड़ा सा गॉसिपिंग ना करें, 2-4 दूसरों की चुगलियां ना करें तो हमारा तो दिन ही नहीं निकलता, हमारे तो पेट में बिल्कुल तितलियां सी दौड़ती रहती हैं जब तक हम ना करें। तो मुझे लगता है क्या आपके पास इतना समय है कि आप दूसरों को डिस्कस कर सके अपने जीवन में? बहुत सारे लोग अपने जीवन को ऐसे जीते हैं कि दे हैव अ परमानेंट वीजा ऑन दिस अर्थ, मतलब कि उन्हें धरती से कभी वापस जाना ही नहीं है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मान लीजिए मैं, मेरे पास सिंगापुर गई, मैं दुबई गई, कहीं भी मैं गई, केरला गई, किसी भी अच्छे डेस्टिनेशन पे गई, आई वुड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दैट डेस्टिनेशन। मैं देखूंगी कि आज मैं वहां क्या बेस्ट कर सकती हूँ। क्या वहां मैं बैठ करके गॉसिपिंग करके अपना समय निकालूंगी? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, वी आर ऑन दिस प्लेनेट अर्थ फॉर अ लिमिटेड टाइम। किसके पास कितने दिन का वीजा है हमें मालूम ही नहीं है। हम कल वापस चले जाएंगे, परसों वापस चले जाएंगे, हमें ये बिल्कुल मालूम ही नहीं है। तो व्हाई नॉट टू लिव अ लाइफ जिससे कि हम लोग के जाने के बाद भी शायद बहुत सारे लोग बोलें कि यस, जिंदगी जिए तो हम इसके तरीके से। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम अपने जीवन को ये सोच के जिएंगे दैट वी हैव अ लिमिटेड टाइम ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, वी आर जस्ट अ ट्रैवलर, और जितनी भी देर हम अपने को पैसेंजर्स के साथ, चाहे वो हमारा स्पाउस है, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हैं, दे ऑल आर को पैसेंजर्स इन आवर लाइफ। और जितनी देर भी हम उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हमें अपनी जर्नी को अच्छा बनाना है। अगर हम ट्रेन में जाते हैं तो क्या हम अपने को पैसेंजर को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं? नो वी डोंट। हमें मालूम है कि 1-2 घंटे का सफर है, वो निकल जाएगा। तो इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, वी आर लिविंग अ वंडरफुल लाइफ हियर। इमोशनल वेलनेस की मैं बात करूं, ये इमोशंस हैं क्या? एक्चुअली वी आर ह्यूमंस एंड दीज इमोशंस ओनली मेक अस ह्यूमन। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम में इमोशंस होंगे नहीं तो सोचिए फिर तो हम मशीन ही हो गए। मशीन्स आर मोर प्रोडक्टिव देन ह्यूमंस। शायद कंप्यूटर्स आर मोर productive. People are speaking about artificial intelligence. But my dear friends, no one is speaking about intuitive intelligence. Our intuitions, our gut feeling, our brain is much more powerful than these machines. These emotions, they make us more powerful. आप देखिए, जितने लोगों ने भी इतिहास लिखा है वो लोग हाईली इमोशनल थे। आप कितने भी साइकेट्रिस्ट से मिलिए, साइकोलॉजी की बुक्स पढ़िए, आप अपनी हिस्ट्री को पढ़िए। अगर आपको हिस्ट्री को पढ़ना अच्छा लगता है तो बड़े बड़े कैरेक्टर्स जिन लोगों ने बहुत महान काम किए, आप पाएंगे दे वर हाईली इमोशनल पीपल। व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट इमोशंस, जो इमोशनल लोग होते हैं वो दिल से काम करते हैं, और जब हम दिल से काम करते हैं तो वो काम सिरे चढ़ता ही चढ़ता है। So my dear friends, our emotions, they make us very powerful. लेकिन ये emotions ही हमें powerful बनाते हैं और ये emotions ही हमें weak बनाते हैं। आप देखिए, सबसे पहला जो डिप्रेशन का पेशेंट हम लोगों ने पढ़ा, अर्जुन को पढ़ा गीता में। आप ये देखिए, वो इतने बड़े योद्धा थे, इतने बड़े, मतलब अगर उनका निशाना कभी चूकता ही नहीं था, लेकिन युद्ध के मैदान में जाकर के उनके इमोशंस ने इतना परेशान कर दिया कि कृष्ण जी को पूरी गीता के 18 अध्याय उन्हें समझाने पड़े। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो इमोशंस हैं ये हमें बिल्कुल कभी कभी एकदम वीक भी बना सकते हैं। जब इमोशंस में इतनी पावर है तो हमें इन इमोशंस को समझना चाहिए कि ये इमोशंस हैं क्या, ये किस तरीके से हमारे जीवन में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अब आप देखिए, बात हम करते हैं नेगेटिव इमोशंस की, पॉजिटिव इमोशंस की। सी, इमोशंस को नहीं मालूम क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, ये नाम तो हम इंसानों ने उनको दिए। कुछ लोग कहते हैं कि एंगर इज अ वेरी नेगेटिव इमोशन, कुछ लोग कहते हैं एंगर इज अ वेरी पावरफुल इमोशन। सो एंगर नेगेटिव इमोशन है या एंगर पावरफुल इमोशन है? एंगर क्या है? एंगर एक टूल है। मान लीजिए जैसे कि एक चाकू है, अगर वो एक सुलझे हुए सर्जन के हाथ में तो वो किसी की जान बचा सकता है,
लेकिन अगर वही चाकू किसी क्रिमिनल के हाथ में है तो वो किसी की जान ले सकता है। जिस तरीके से चाकू का डबल रोल है, सेम इज द रोल ऑफ एंगर। अगर जब किसी बात पे गुस्सा आता है, जिसको गुस्सा आता है उसको मालूम है कि मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, यानी वो एक सर्जन की तरह उस एंगर को यूज करता है, तो वो एंगर उसके जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। लेकिन जैसे क्रिमिनल होता है, उस चाकू को कैसे चलाना है वो उसको सोचता ही नहीं है, बस उसको तो चलाना है, उससे कोई मरे क्या हो उसको कोई लेना देना नहीं है। उसी तरीके से कुछ लोग अपने गुस्से को भी, जैसे क्रिमिनल अपने चाकू को यूज करता है, उसी तरीके से दे यूज देयर एंगर। उनका मकसद है सिर्फ भड़कना, उसके बाद उससे क्या हो क्या ना हो, किसी में सुधार हो ना हो, उसको उनसे कुछ लेना देना वास्ता ही नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, एंगर को लेकर के मेरे को एक चीज जीवन में समझ आई जिसने मुझको बदल के रख दिया। मान लीजिए महात्मा गांधी को नॉन वायलेंट पर्सन कहा गया कि उन्हें क्या लगता है, क्या महात्मा गांधी को गुस्सा नहीं आता था? महात्मा गांधी को काफी गुस्सा आता था। जब उन्हें साउथ अफ्रीका में किसी ने धक्का दिया, उन्होंने उसी दिन डिसाइड किया कि मैं आज हिंदुस्तान में जाऊंगा, वापस जाऊंगा। उन्होंने अपना बैरिस्टर का काम को छोड़ करके हिंदुस्तान आकर के हिंदुस्तान में एक इतनी बड़ी फौज तैयार की, सत्याग्रह किया, और उन्होंने अपने गुस्से की पावर को चैनलाइज करके हिंदुस्तान को आजाद करा दिया। लेकिन अगर वो साउथ अफ्रीका में वही अंग्रेजों के ऊपर भड़कते, वही अंग्रेजों से लड़ाई करते, तो क्या होता? शायद जेल की सलाखों के पीछे होते। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग मुझे अक्सर मिलते हैं, इंदु जी गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा गुस्सा बिल्कुल करना चाहिए, अगर कोई सामने वाला इंसान गलत करेगा, यस वी शुड, लेकिन हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो एंगर इज अ पावरफुल टूल। एंगर इज नॉट गुड, एंगर इज नॉट बैड। अगर आप सही बात पे सही तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं और उससे सामने वाले के जीवन में कुछ सुधार आता है, सो एंगर इज अ वेरी पावरफुल टूल। इसी तरीके से हम बात करेंगे जेलसी की। इज जेलसी गुड और बैड? बहुत सारे लोगों को देखिए, आप देखते हैं कि जैसा मैंने बताया, वो खुद के जीवन से दुखी नहीं है, वो दूसरों के सुख से दुखी है। अब जेलसी इज ऑल्सो एन इमोशन। अगर हम जेलसी इमोशन को समझ लें तो हम जीवन को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। जेलसी हमें किससे होती है? जो लोग या तो हमसे स्किल में बेटर है, या जो लोग हमसे माइंडसेट बेटर है, या फिर उनके पास हमसे बेटर सक्सेस है। मान लीजिए बहुत सारी लेडीज हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑल्सो लेडी, आई वेयर साड़ीज। मैं मान लीजिए पार्टी में जाने से पहले बहुत खुश थी, ओके इंदु यू आर वेयरिंग अ ब्यूटीफुल साड़ी, लेकिन वहां पर मैंने 10 लेडीज को और देखा, और मैंने देखा वाओ मुझसे भी ज्यादा वंडरफुल साड़ीज पहनी हुई है। एक ऑप्शन हो सकता है कि अरे इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे है ना, और मैं परेशान हो सकती हूँ। दूसरा, मैं उनको अप्रिशिएट कर सकती हूँ और ये पूछ सकती हूँ कि आपने ये साड़ी कहाँ से ली, मेरे लिए भी आप अगर हो सके तो एक ऑर्डर करा दीजिएगा। तो दिस इज द वे हाउ वी रिएक्ट। सो आई थिंक जेलसी हमें उन्हीं लोगों से होती है जो हमसे बेटर हैं, यानी कि इट इज अ सिग्नल इन आवर लाइफ, यू नीड टू इम्प्रूव योरसेल्फ। अगर हम इस अपने इमोशनल सिग्नल को समझ लें कि अगर हमें किसी से जेलसी है तो ये एक सिग्नल है सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, और अगर हम अपने जीवन को सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगा देंगे तो एक दिन हम उस इंसान का थैंक यू करेंगे। सो मुझे लगता है कि एक हमारे हरियाणा में, बिकॉज आई बिलोंग टू हरियाणा में हमेशा लिखा होता है ट्रक के पीछे कि जलो मत, रीस करो। जेलसी करने से कुछ नहीं होगा, खुद के जीवन को इंप्रूव करो। डाउट कब आता है? जब लैक ऑफ नॉलेज। अब मान लीजिए अगर हमें किसी चीज को लेकर के डाउट आ रहा है तो बेटर है हम उसकी नॉलेज लें, या फिर जिन लोगों के पे हमें भरोसा है या हम श्योर हैं कि इन लोगों के पास ये एक्सपर्ट्स हैं, इस चीज के लिए हम इनसे एडवाइस ले सकते हैं, तो हम उनसे एडवाइस लेकर के फेथ के साथ जीवन जिए। सैडनेस, फियर, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, all these things are signal that I need to change something. Let's say I will speak about guilt. अगर हमसे कुछ गलती हो भी गई, as I told कि we all have
a little bit of Duryodhan within us. किसी में 10%, किसी में 20%, तो किसी में 40%, तो किसी में 80%, लेकिन है सबके अंदर. Because no human is perfect. Every human has some dark aspects in their life. अब मान लीजिए कुछ गलती हुई, एक ऑप्शन है हम हमेशा गिल्ट में जीते रहें, दूसरी ऑप्शन है हम खुद अपने आप को फॉरगिव करें और उसके बाद उस गलती को सुधार करें. अगर हम एक ही गलती को बार बार करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है. सो गिल्ट kills us, regret kills us. Be compassionate with yourself, learn to forgive yourself, learn to love yourself. Trust me, अपने हर इमोशन को समझिए, अपने ऊपर समय व्यतीत कीजिए. सब लोग मुझे कहते हैं कि इंदु, फ्रॉम वेयर यू गेट टाइम, आपको इतना समय मिलता कहाँ से? मैं क्या करती हूँ, जब सब लोग मेरे घर में उठते हैं, आई मेक श्योर कि मैं उससे थोड़ा सा पहले उठूं और वो समय मैं सिर्फ अपने लिए रखती हूँ. आई इन्वेस्ट दैट टाइम विद माई सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ. जैसे जैसे मैं खुद को समझती चली गई, मेरा जीवन जीने का तरीका आसान होता चला गया. सो जब हम अपने इमोशंस को समझना शुरू कर देते हैं, खुद को समझना शुरू कर देते हैं, हमारे अंदर एक सेल्फ है जो हमारी आत्मा. जब हम अपने सेल्फ से कनेक्टेड हो जाते हैं, ट्रस्ट मी, योर सेल्फ, योर सोल इज योर बेस्ट गाइड. उससे बड़ा गुरु आपको जीवन में कभी कोई मिल ही नहीं सकता. सो आप अपने सेल्फ से कब कनेक्ट होंगे? जब आप अपने साथ समय व्यतीत करेंगे. स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिस इंसान ने अपने साथ समय नहीं गुजारा, उसने जीवन में एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही महान आत्मा को अपने जीवन से मिस कर दिया. सो माय डियर फ्रेंड्स, दूसरों की थाली में झांकने से अच्छा, दूसरों के घरों में झांकने से अच्छा, दूसरों की लाइफ में झांकने से अच्छा अपने जीवन में झांक के देखिए. बिकॉज वी आर हियर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ फॉर अ वेरी वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. जब हम अपने इमोशंस को समझेंगे, उन्हें एक एज अ पावरफुल टूल यूज करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे जीवन में पर्सनल डेवलपमेंट होगी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, हमारे ड्रीम्स अचीव हम कर पाएंगे, एस्पिरेशंस, हमारे साथ बहुत सारे एम्बिशंस हैं, उनको हम पूरा कर पाएंगे. एंड ह्यूमन कैपिटल, दिस ये सब्जेक्ट मेरे हार्ट को इतना टच करता है. जब लोग इंडिया को एक गरीब देश कहते हैं, मुझे लगता है कहाँ से इंडिया गरीब है? वी हैव द मोस्ट प्रोडक्टिव पॉपुलेशन एंड आवर पॉपुलेशन इज वेरी यंग एंड आवर पॉपुलेशन जो है वो बहुत प्रोडक्टिव है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारी पॉपुलेशन आज की डेट में डायरेक्शनलेस है. ना तो हम वेस्ट को अडॉप्ट कर पाए, ना हम अपनी वैल्यूज को अडॉप्ट कर पाए. इंडिया वाज स्पिरिचुअली रिच. दुख होता है जब बाहर से फॉरेनर्स आकर के हमारे देश को स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं, बिकॉज इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ स्पिरिचुअल कंट्री. जितने वैल्यूज हमारे अंदर है, हमारे पेरेंट्स ने जो हमें संस्कार दिए हैं, मुझे लगता है किसी कंट्री में वो सिखाए ही नहीं जा सकते. सो इमोशनली, स्पिरिचुअली वी वर रिच. लेकिन आज आप देखिए, हम बिल्कुल इमोशनली बैंक करप्ट की तरह, दुखी आत्मा की तरह सोच रहे हैं कि कहीं से हमें कुछ मिल जाए. अरे मिलने की मत सोचो, ये सोचिए कि वी हैव बीन स्पिरिचुअली, इमोशनली वेरी रिच. हम किसी से लेंगे नहीं, हम इस लायक बनेंगे कि हम बहुत सारे लोगों को देंगे. सो ह्यूमन कैपिटल, हम अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकते हैं. दैट इज द पावर वी ऑल हैव. सो माय डियर फ्रेंड्स, these emotions, they make us very powerful. When I say mindset, heart, कहते हैं ना, दिल मांगे मोर. लेकिन हमने अपने दिल को सिर्फ एक पंपिंग मशीन की तरह यूज करते हैं कि जस्ट एक ब्लड को, ऑक्सीजन हमारी बॉडी को वो पहुंचाने का काम कर रहा है. जो हमारा दिल सिर्फ एक ब्लड पंपिंग की मशीन नहीं है. अगर हम अपने दिल की आवाज सुनेंगे, अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे, हम ना केवल अपने परिवार के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए अपने जीवन को एक इंस्पिरेशन का सोर्स बना पाएंगे. अब हंसते हुए चेहरे आप सब लोग देख रहे हैं. ये हंसते हुए चेहरे हमें कैसे मिलेंगे? जब हम अपने इमोशंस को समझना शुरू करेंगे, हमारे अंदर कुछ कुछ चेंजेस आएंगे. वी विल फील एनर्जेटिक, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे जीवन का कुछ मकसद है. जब हम सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में लग जाएंगे, we will be peaceful.
एंथ्यूजियाज्म हमारे अंदर होगा, बिकॉज हमें पता है कि यस हमारा एक मकसद है, हमें उसको अच्छे से जीना है। और एक बात मैं बोलूं, जब आप इमोशनली लोगों को एम्पावर करते हैं तो आप अपने आसपास इतने अच्छे लोग पाते हैं, क्योंकि हर इंसान उस इंसान के साथ कनेक्ट होना चाहता है जो उनको एम्पावर कर सकता है, जो उनको प्यार कर सकता है। सो लव is a very powerful emotion and love is more powerful than anger. गुस्से से भी ज्यादा पावरफुल इमोशन है लव। कभी किसी को अनकंडीशनली लव करके देखिए, आपको पता चलेगा आपके अंदर कितनी एनर्जी आती है, आपके अंदर कितना एंथुसियाज्म आता है। सो अनकंडीशनल लव दैट मेक्स अस अ वेरी पावरफुल पर्सन। ये जो इमोशंस हैं, जब हम इनको समझते हैं वन बाय वन, सी इट इज बाय प्रैक्टिस। मान लीजिए मुझे साइकिल चलाना नहीं आता, मैंने 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करते करते मुझे साइकिल चलाना आ गया। मुझे स्विमिंग करना नहीं आता था, लेकिन मैंने पानी में जंप किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया, प्रैक्टिस करते करते मुझे साइकिल चलाना आ गया, स्विमिंग करना आ गया। उसी तरीके से अपने इमोशंस को समझना कैसे आएगा? विद प्रैक्टिस। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। जब आपको किसी भी चीज को हर्ट हो, आप कई बार जब आपके साथ कुछ बुरा होता है आप कहते हैं व्हाई मी, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आप उसी वक्त 10 अच्छी चीजें सोचिए जो आपके जीवन में हुई। जब वो 10 अच्छी चीजें आपके जीवन में हुई, तब आपने भगवान से ही पूछा व्हाई मी। आज कुछ गलत हुआ है तो हम क्यों पूछ रहे हैं व्हाई मी? यानी जब अच्छा हो रहा था तब तक हमें पूरा विश्वास था, आज कुछ गलत हुआ तो हमारा विश्वास डगमगा गया। सो इंटरपर्सनल अवेयरनेस, सबसे पहले हमें अपने आप से हमारा रिलेशन बेटर होता है, उसके बाद दूसरे लोगों से हमारा रिलेशन बेटर होता है, हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जीवन में डिसीजन ही नहीं ले पाते, पूरा जीवन ही उनका कंफ्यूजन में निकल जाता है, क्या करूं कि ना करूं, इस सड़क पे जाऊं उस सड़क पे जाऊं, और पता चलेगा सड़क पे एक्सीडेंट करा लेंगे इसी कंफ्यूजन में। सो आई सी लॉट ऑफ लाइफ, दे आर लिविंग सच ए कंफ्यूज्ड लाइफ। उनको ये पता ही नहीं है कि उनको जीवन में चाहिए क्या। 10 साल पहले भी वही तलाश रहे थे, 10 साल के बाद भी वही तलाश रहे, यानी कि उन्होंने 10 साल में कुछ होमवर्क ढंग से अपने ऊपर किया ही नहीं। सो अगर हम अपने ऊपर होमवर्क करेंगे, हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। जब हमें खुद की नॉलेज हो जाएगी तो हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी, हमें लोगों से डर लगना बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोग देखिए, अगर उन्हें कुछ लोग प्रेज कर दे खुश हो जाते हैं, कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज कर दे, उनके लिए गलत बोल दे, वो दुखी हो जाते हैं। मैं कहती हूं अगर आप सोना हो, किसी ने आपको पीतल कह भी दिया तो आपको क्या फर्क पड़ा? यू नो दैट यू आर अ गोल्ड। अगर आप ओरिजिनल डायमंड हो, किसी ने आपको अमेरिकन डायमंड कह भी दिया, आपको क्या फर्क पड़ा? सो मुझे लगता है वंस यू स्टार्ट नोइंग, वंस यू नो दैट योर डायरेक्शन इज राइट, तब आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी। कौन आपके बारे में क्या कहता है क्या नहीं कहता, आपको उसका रत्ती भर भी असर आपके जीवन पे नहीं पड़ेगा। एम्पैथी, जब हम अपनी गलतियों को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे तो दूसरे लोगों के साथ भी हम एम्पैथाइज कर पाएंगे, हम उनको भी प्यार कर पाएंगे, हम ये जान पाएंगे कि हाँ सबसे हो जाता है। वी विल बी एबल टू पुट आवरसेल्फ इन अदर शूज। हम समझ पाएंगे कि दूसरे लोगों के साथ भी ये होता है। मोटिवेशन, जब हम अपने इमोशंस को समझ लेंगे, एक होता है विक्टिम माइंडसेट और एक होता है विनर्स माइंडसेट। अगर मैं खुद ही विक्टिम माइंडसेट के साथ जीवन जी रही हूँ, हाय मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया, तो क्या मैं दूसरों को इंस्पायर कर पाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा खुद का जो माइंडसेट है विनर्स माइंडसेट। और संजय जी आज आपको ये प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी और माइंडसेट के बारे में बहुत अच्छे से बताने वाले हैं कि हर चीज जीवन में 2 बार होती है। पहले घटना हमारे अंदर घटती है, उसके बाद वो घटना हमारे बाहर घटती है। सो आप किस तरीके से ये इमोशंस, आपका माइंडसेट चेंज करने में अपनी मदद कर पाएंगे, इन चीजों के बारे में संजय जी आपके साथ बात करेंगे। सो अगर हमें अपने इमोशंस को समझना है तो बाहर ना झांक करके खुद के अंदर झांकना पड़ेगा। कई बार जब लोग दूसरों के जीवन में झांकते हैं, मुझे उनके ऊपर काफी दया आती है। गुस्सा तो आना बंद ही हो गया है,
बिकॉज आई रियलाइज कि ओ दे आर सो इग्नोरेंट, इन बेचारे लोगों को पता ही नहीं ये अपने जीवन में कर क्या रहे हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, लोगों के साथ कंपैशनेटली डील करो. अगर आप कंपैशनेट करेंगे, कई बार लोग गलतियां करते हैं, जब हम उन्हें कुछ नहीं कहते तो उन्हें लगता है हम वीक है, लेकिन विवेकानंद कहते हैं जब आप एक्शन ले सकते हो फिर भी आप माफ कर देते हो, ये जेंटल की निशानी है, ये कंपैशन की निशानी है. बहुत सारे लोग वो बेचारे करने की कुछ पोजीशन में ही नहीं है और वो कहते रहते हैं देखो हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया. वो कर ही कुछ नहीं सकते थे. तो अगर आप वीक हो और आपने कुछ नहीं किया, आपने इसलिए नहीं किया बिकॉज आपके पास पावर थी ही नहीं. अगर आपके पास पावर है, पैसा है, उसके बाद भी आप कंपैशनेट हो सकते हो. आई थिंक दैट इज द टाइम. मुझे लगता है कि विवेकानंद ने बिल्कुल सही कहा, सब कुछ होते हुए भी अगर आप प्यार से लोगों के साथ डील करते हो, कंपैशनेटली लोगों के साथ डील करते हो, then that is the time you start living a wonderful, beautiful life. So deep emotions and shallow emotions, जिन चीजों को हम सुबह से शाम वर्बलाइज करते हैं वो हमारे डीप इमोशंस बन जाते हैं. मान लीजिए मेरा सर दर्द है और मैं सुबह से बोल रही हूँ मेरा सर दर्द है, सर दर्द है, सर दर्द है, बोले जा रही हूँ, तब तक बोल रही हूँ जब तक सारे घर में सर दर्द नहीं हो गया. इज इट गुड? नॉट गुड. हमने अपना जीवन तो खराब किया ही किया, साथ में अपनी फैमिली का लाइफ भी खराब किया. मुझे लगता है कि यस, अगर पेन है आप उसको खुद से बियर कर रहे हो, लेकिन दूसरों को बोलने से दूसरे लोग ये बोल देंगे ओ वी अंडरस्टैंड. कैन दे डू समथिंग फॉर योर पेन? दे कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर योर पेन. लेट्स से मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और मैं उस प्रॉब्लम को बार 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 10, 20, 30 लोगों के आगे जाके डिस्कस कर रही हूँ. सो जो मेरे डीप इमोशंस हैं, आई एम गिविंग अ सिग्नल टू द यूनिवर्स, और ऊपर से भगवान कहेगा तथास्तु, बेटे तुम्हारी लाइफ हमेशा प्रॉब्लम में ही रहे. सो जिन बातों को हम वर्बलाइज नहीं करते, शैलो इमोशंस, क्या हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है तो हमने उसको वर्बलाइज किया. बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जब उनके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो वो उसको छुपा लेते हैं. अरे किसी को बता देंगे तो नजर लग जाएगी. अरे जो चीज भगवान आपको दे रहा है उसको कौन नजर लगा सकता है. आपके जीवन में जो अच्छा हो उसको लोगों को बताना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में अच्छा होता चला जाएगा. और आपके जीवन में अगर कुछ अच्छा हो रहा है उसको आप छुपा रहे हैं, और आपके जीवन में कुछ बुरा हो रहा है उसको आप स्प्रेड कर रहे हैं, तो भगवान आपका जीवन वैसा ही कर देगा. और ये मैं लैक्स ऑफ लोगों की, मैं और संजय जी ट्रेनिंग कर चुके हैं, और ट्रेनिंग करते करते हम देखते हैं कि उनका जीवन क्यों अच्छा नहीं हो पा रहा, तो हम देखते हैं कि वही सुबह से शाम तक अपने जीवन को बुरा बनाने में पूरा पूरा रोल अपने लिए प्ले कर रहे हैं. बिकॉज सुबह से शाम उनकी हर बात में नेगेटिविटी है. जब हर बात में नेगेटिविटी है तो भगवान उनको पॉजिटिव देगा कैसे. सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट वर्बलाइजिंग दोज थिंग्स व्हिच आर पावरफुल, व्हिच आर पॉजिटिव, तभी आप दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे. नाउ आई विल स्पीक अबाउट फिजिकल हेल्थ. लिसन टू आवर बॉडी. Our body is our best friend. और आज मैंने पता है इमोशंस की बात क्यों की, क्योंकि जैसे टॉक्सिक फूड हमारी हेल्थ को खराब कर देता है, वैसे ही टॉक्सिक थॉट एंड टॉक्सिक इमोशंस वो हमारी हेल्थ को बिल्कुल खराब कर देते हैं. अब मैं काफी बड़े बड़े डॉक्टर्स, मेरे आज दोस्त भी हैं, मैं उनके साथ काम भी करती हूँ, सारे डॉक्टर्स कहते हैं इंदु डायबिटीज शायद चीनी खाने से नहीं होती, डायबिटीज सारा दिन खाम खाम का स्ट्रेस लेने से होती है. तो अगर 90% बीमारियां जो हैं दे आर ईदर स्ट्रेस रिलेटेड और दे आर लाइफस्टाइल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. हर घर में कोई ना कोई बीमारी है. आप देखिए हम सब एक बेहतर सुंदर जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन उस बेहतर सुंदर जीवन जीने के लिए हमें अपने शरीर का साथ भी चाहिए. मान लीजिए मेरे पास पैसा है, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ 10,000 रुपए की साड़ी, लेकिन मेरे घुटने काम ना करें, तो क्या वो साड़ी मुझ पे अच्छी लगेगी? शायद मैंने 800,000 रुपए की साड़ी पहनी हो और मेरे घुटने काम कर रहे हो, वो मेरे लिए शायद ज्यादा अच्छा रहेगा. सो अपने शरीर को कैसे आपका दोस्त है, आप दोस्ती किससे निभाएं. मैं कई बार लोगों को देखती हूँ, मैं कहती हूँ अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए. वो कहते हैं इंदु जी हमारे पास तो टाइम ही नहीं है. और फिर मैं देखती हूँ वो दोस्तों के साथ बैठ के फालतू की गॉसिपिंग कर रहे होते हैं. मैं सोचती हूँ कि अगर खुद के पास, हमारे पास अपने शरीर के लिए समय है ही नहीं, तो वो शरीर की हम सुबह से शाम रगड़ाई करते हैं, लेकिन हम अपने शरीर को थोड़ा सा भी समय नहीं देते.
सो माय डियर फ्रेंड्स, हम क्या जानते हैं, हम क्या मानते हैं, उससे फर्क पड़ता ही नहीं। जानने और मानने के बाद हम करते क्या है, फर्क सारा उससे पड़ता है। हम डाइनिंग टेबल पे बैठे, मैं कितने घरों में देखती हूँ बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, हेल्थ का ध्यान रखते हैं, डाइटिशियन से डाइट लेते हैं, उसके बाद भी पूरा घर बीमार है। व्हाई? रीजन बी दे हैव नेगेटिव थॉट्स, दे हैव टॉक्सिक थॉट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे इमोशनल थॉट्स और उसके साथ अपने बॉडी का ध्यान रखना। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। 90% अगर बीमारियों की जड़ लाइफस्टाइल है, 90% बीमारियों की जड़ अगर स्ट्रेस है, सो हमें क्या प्रिवेंट करना चाहिए? मेरा दिल कहता है 100% यस। आप देखिए, हम कार वॉश कराते हैं, 500 रुपीज पर मंथ कार वॉश वाले को दे देते हैं, 6,000 रुपए लगभग साल का हम अपनी गाड़ी की वॉशिंग पे खर्च कर देते हैं। एक 5 से 10 लाख की गाड़ी को मेंटेन करने के लिए कि वो कभी खराब ना हो, हम 30 से 40,000 रुपए खर्च कर देते हैं। हिंदुस्तान में जिन लोगों के पास स्कूटर और बाइक है, 5 से 6,000 रुपए वो लोग भी अपनी बाइक या स्कूटर पे खर्च कर देते हैं। लेकिन जब मैं लोगों को कहती हूँ कि प्रिवेंशन के लिए पैसा खर्चिए, तो लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है, ओ इंदु जी, पैसा खर्चना पड़ेगा? मैं कहती हूँ नहीं, बिल्कुल मत खर्चिए, बाद में नी रिप्लेस कराइए, बिकॉज ये आपकी लाइफ है, आपके घुटने हैं, आपका शरीर है, आपने इससे काम लेना है। व्हाई शुड आई फोर्स एनीबडी? सो व्हेन मेरा काम है लोगों को इन्फॉर्म करना, उसके बाद वो अपने जीवन के साथ क्या करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं अपना कोई भी प्रोग्राम इस एक्सपेक्टेशन के साथ करती नहीं कि हर बंदा मेरी बात सुने। मैं कहती हूँ कि दे शुड कम विद अ सुपर मार्केट अप्रोच। अगर उन्हें 2 घंटे के प्रोग्राम में से एक बात भी अच्छी लगी और उन्होंने उसको अपने जीवन में एग्जीक्यूट कर लिया, इट मे चेंज देयर लाइफ। सो बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ काम करते करते मेरा आयुर्वेद में बिलीफ इतना पक्का हो गया कि मुझे लगा कि यस, हमें प्रिवेंट करना चाहिए। बाय प्रोफेशन आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स। मैंने कोई डिग्री नहीं ली है मेडिकल साइंस में, लेकिन बेसिक्स ऑफ हेल्थ जो मुझे समझ आए, मैं 5 मिनट्स में आपके साथ वो डिस्कस करूंगी। और अगर आपने उन बेसिक्स को पकड़ लिया, आपका बीमार पड़ना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहली बात, हम अपने थॉट्स को इम्प्रूव करें, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव एसोसिएशन में रहें, और जो स्ट्रेस लें वो अपने जीवन को इम्प्रूव करने का लें। अगर हम दूसरों को बदलने का स्ट्रेस लेंगे तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन होगा, अपने आप को बदलने का स्ट्रेस लेंगे तो हमारा जीवन बेहतर होता चला जाएगा। सेकेंड चीज, डिटॉक्सिफिकेशन। आयुर्वेदा में इट्स अ वंडरफुल साइंस, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे बॉडी को पूरा डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती हैं। जैसे कि हम बाहर से अपनी ब्रशिंग करते हैं, बाहर से हम डेली नहाते हैं, बाहर से अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, उसी तरीके से अंदर से अगर हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर लेंगे, आपको कभी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स यानी एसिडिटी की, पेट दर्द की, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको जीवन में कभी होंगी ही नहीं। उसके बाद किडनी की प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। सो डिटॉक्सिफिकेशन इज अ वेरी पावरफुल प्रोसेस। मेरे सेशन के बाद यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मुझे आज शायद पहली बार देख रहे हैं, अगर किसी की भी इससे रिलेटेड क्वेरी है तो डेफिनेटली वो मेरे नंबर पे, जो कि संजय जी शेयर करेंगे, कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। हमारे अंदर का डॉक्टर 2017 का नोबेल प्राइज उस इंसान को मिला जिसने बॉडी क्लॉक के बारे में लिखा। लेकिन आपको मालूम है, बॉडी क्लॉक के बारे में हमारे स्पिरिचुअल ग्रंथों में ऑलरेडी लिखा हुआ था, दिनचर्या को फॉलो कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, रात को टाइम से सोइए। सो ये कोई नई बात नहीं थी। यानी कि जब हम रात को प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो हमारी बॉडी खुद ब खुद को रिपेयर करती है। जब हम बॉडी में राइट न्यूट्रिशन लेते हैं, हमारी बॉडी खुद ब खुद अपने आप को रिपेयर करती है। आप ये देखिए, हम लोग खाना पेट भरने के लिए खाते हैं कि न्यूट्रिशन के लिए? ज्यादातर लोगों की मैं डाइट अगर देखूं तो वो हमेशा पेट भरने के लिए होती है। हम जीभ के थोड़ी सी देर के स्वाद के लिए जो खाते हैं, बाद में वो हमें नुकसान करता है। अगर हम राइट न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में लेकर के जाएंगे, यानी कि मेरी गाड़ी को डीजल चाहिए और मैं डीजल ही डालूंगी, पेट्रोल डालूंगी तो उसका इंजन जैम होगा। सो विद द राइट न्यूट्रिशन, sometimes I
speak to people about health supplements and nutraceutical, वो कहते हैं इंदु जी ये लेने की जरूरत क्यों है? I always tell them because आज हमारे खाने में बहुत सारा यूरिया एंड पेस्टिसाइड है. That is the reason हमें अपनी डाइट में बाहर से न्यूट्रिशन लेने की जरूरत है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम अपने HB, आज आप देखिए 70% फीमेल्स आर एनेमिक, 65% मेल आर एनेमिक, 70% चाइल्ड आर एनेमिक, जबकि पूरी सरकार हमारे देश की आई थिंक 40 साल से आयरन की टैबलेट्स फ्री में खिला रही है, फिर भी पूरा देश एनेमिक है. आप देखिए सुबह 7 घंटे की नींद पूरी करने के बाद भी लोग थके थके गिरे रहते हैं. रीजन बीइंग उनका जो HB लेवल है वो लो होता है. तो मैं आपके साथ कुछ ऐसी बीमारियों की स्लाइड्स शेयर करने जा रही हूँ जिनके पास हमारे पास इतने सारे टेस्टिमनीज है, और मैं एश्योर कर सकती हूँ अगर किसी ने हमारा कहना माना 16 महीने से 2 साल अगर हमारी चीजों को वो फॉलो करते चले गए, क्योंकि जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का हमारे पास कोई कैप्सूल नहीं है कि आज हमने एक सेशन किया और कल आपका जीवन बदल जाएगा. सेशन करने से हम आपको बता सकते हैं कि क्या क्या चेंज करने की जरूरत है, और उसके लिए हम आपको एक गाइड मैप दे सकते हैं. लेकिन उसके बाद अगर आपने उस स्टेप को फॉलो किया, एंड देयर इज अनदर गुड न्यूज, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इंदु मैम को एडवाइस देंगी तो उसका पैसा चार्ज करेंगी. माय डियर फ्रेंड, संजय जी ऑलरेडी अपने बिजनेस से काफी पैसा कमाते हैं, तो मुझे यहाँ पर किसी को सलाह देके पैसा चार्ज करने की जरूरत नहीं है. इट इज जस्ट एन एंडेवर फ्रॉम माय फाउंडेशन, दिशा फॉर इंडिया फाउंडेशन एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में डिफरेंस क्रिएट कर सके. सो यहाँ पर काफी सारी चीजें जिनके बारे में हम लोग आयुर्वेदा के साइंस से इसको हील कर सकते हैं, और 100% आपको जो मेडिसिन है, इट इज अ मिथ, बीपी की मेडिसिन कभी नहीं छूटेगी, इट इज अ मिथ. दवाई छूट सकती है प्रोवाइडेड यू चेंज योर लाइफस्टाइल. थायराइड की मेडिसिन कभी नहीं छूटेगी, इट इज अ मिथ. थायराइड भी आपका बैलेंस हो सकता है. डायबिटीज की मेडिसिन कभी नहीं छूटेगी, इट इज अ मिथ. आप डायबिटीज एक लाइफस्टाइल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. अगर किसी की कोई भी क्वेरीज होंगी तो हमारे साथ बहुत रिनाउंड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जिनसे हम आपकी बात करा सकते हैं, और 100% ये सारी चीजों को हम हेल्प करने में आपकी मदद कर सकते हैं. 2017 में मैंने काफी स्कूल्स कॉलेजेस में जाकर के स्ट्रेस को लेकर के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, PCOS की प्रॉब्लम को लेकर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, और बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे यंग बच्चों को उसमें फर्क पड़ा. तो 100% फिजिकल हेल्थ को आयुर्वेद, इट इज अ कंप्लीट साइंस. और कोरोना क्राइसिस के चलते मुझे लगता है कि हमारा जो आयुष मंत्रालय वो भी जाग गया फाइनली, और उन लोगों ने भी लोगों को सलाह देनी शुरू की कि यस आयुर्वेद काम करता है. आज हमारा आयुष मंत्रालय तो अब जागा है, लेकिन पिछले 7 ईयर्स से जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, जिन लोगों ने मेरे प्रोग्राम्स को अटेंड किया है, वो जानते हैं पिछले 7 ईयर्स से आई वाज स्पीकिंग ओनली अबाउट वन थिंग, आयुर्वेदा वर्क. क्योंकि मेरे पास एक टेस्टिमनी थी, मेरे हस्बैंड का IBS का प्रॉब्लम आयुर्वेदा से सॉल्व हुआ. मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम जो कि सालों से था, जिसके लिए मैं हेडसेट, नेफ्रा जैसी मेडिसिन खाती थी, मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो गया. तो इसीलिए डेफिनेटली इट इज अ बिग साइंस, लेकिन हमें अपने लाइफस्टाइल और इमोशंस को साथ में करना पड़ेगा. नाउ वी विल स्पीक अबाउट रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप्स हमारी खुद के साथ कैसी रिलेशनशिप हो उसके बारे में ऑलरेडी मैंने बात किया. हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा हो, हमारे स्पाउस के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा हो, बच्चों के साथ कैसा हो, सोसाइटी के साथ कैसा हो, और हमारा रिलेशनशिप पैसे के साथ कैसा हो. आज सेल्फ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वी नीड टू बी कंपैशनेट विद आवर बॉडी एंड विद आवर सेल्फ. वी नीड टू लव आवर सेल्फ. पेरेंट्स, देखिए कई बच्चों को मैं देखती हूँ कि वो अपने पेरेंट्स को बदलने की कोशिश करते हैं. मैं सोचती हूँ कि देखिए वो उन लोगों का जीवन जो है जैसा था उन्होंने बहुत अच्छा किया. क्या हम अपने पेरेंट्स को बदलने की कोशिश में अपना जीवन खराब नहीं करेंगे? बिल्कुल कर लेंगे. शायद आज हम अपने पेरेंट्स को बदलने की कोशिश करेंगे तो कल हमारे बच्चे हमें बदलने की कोशिश करेंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. वो जैसे भी है उन्होंने कुछ ना कुछ लाइफ में आपके लिए किया है. जो भी आज हैं जीवन में किसी भी मुकाम पे पहुंचे, एटलीस्ट उन लोगों ने आपकी एजुकेशन के लिए पैसा दिया, तभी आज हम पढ़ाई कर पाए. अगर वो हमारी एजुकेशन के लिए पैसा ना देते हम कहाँ से पढ़ाई कर पाते. सो मैं हमेशा सब लोगों को कहती हूँ, समटाइम्स आई मीट लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स,
They are ready to make a compromise with their maid, but they are not ready to make the compromise with their mother-in-law. मेरा एक नारी शक्ति का प्रोग्राम आया था आज से लगभग 2 साल पहले. मैंने उसमें भी सारी लेडीज को एक ही मैसेज दिया, अरे जब आप मेड के साथ 100 कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो आप अपनी मदर इन लॉ के साथ क्यों नहीं कर सकते वो सारे कॉम्प्रोमाइज. रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. वो आपके हस्बैंड के माता पिता हैं, जब भी तो अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तभी तो आपके हस्बैंड कल को आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे. आज अगर मैं कुछ गलत करूंगी, टुडे व्हाट एन एग्जांपल विल आई सेट फॉर माय डॉटर, शी विल डू समथिंग रॉन्ग. सो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे अपने पेरेंट्स को बदलना चाहते हैं और अगर वो आज मेरा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो मैं कहती हूँ इस बात को कभी मत भूलिए कि आपके भी आने वाले समय में जब बच्चे होंगे आपको बदलना चाहेंगे, शायद आपको काफी बुरा लगेगा. तो वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, यू आर देयर बिकॉज ऑफ देम, सो जस्ट रिस्पेक्ट देम. अगर आप उनके लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट यू कैन बी कंपैशनेट विद देम, यू कैन रिस्पेक्ट देम. रिलेशनशिप विद योर स्पाउस. कई बार मैं देखती हूँ कि जैसे ही शादी होती है हमें लगता है ओ नाउ इट इज फॉर ग्रांटेड, अब तो हम जो मर्जी हमारा दिल करे वो कर सकते हैं. सो माय डियर फ्रेंड, एवरी रिलेशनशिप हैज सम सेक्रेडनेस, सम पावर इन इट. सो आप अपने स्पाउस की लाइफ में स्पेस दें, डिफरेंस क्रिएट करें, एम्पावर करें, एनकरेज करें. और मैं कहती हूँ अगर एम्पावर और एनकरेज नहीं कर सकते तो कम से कम डिस्करेज ना करें, कम से कम ट्रस्ट करें. बिकॉज अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जिस दिन ट्रस्ट गायब हो गया उस दिन मुझे लगता है बस फिर तो ये है कि दो लोग एक साथ रह रहे हैं लेकिन उनके रिलेशनशिप का कोई मीनिंग नहीं है. सिर्फ वो रिलेशनशिप सोसाइटी के लिए निभा रहे हैं, बट दे आर लिविंग अ वेरी मिजरेबल लाइफ. विद योर किड्स, गिव स्पेस टू योर किड्स. हम सोचते हैं कि हमारे सपने पूरे नहीं हो या अब ये सारा कुछ हमारे बच्चे हमारे लिए करके दे. व्हाई? आपने बच्चों को पैदा किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप जो मर्जी चाहें उनसे कराएं. आप अपने बच्चों को, जैसे एक माता पिता का रोल होता है एक अच्छे गार्डनर का, जैसे एक अच्छा माली पौधे लगाता है और पौधे लगाने के बाद वो उनको समय समय पर सींचता है, लेकिन वो पौधे को अगर खींच खींच के बड़ा करने की कोशिश करेगा तो वो अपने रिलेशनशिप को खराब कर लेगा, वो पौधे कभी भी अच्छे से बड़े नहीं होंगे. सो हमारा रोल अपने बच्चों के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड का नहीं है, हमारा रोल अपने बच्चों के साथ एक गार्डनर का है. आप सोचिए पहले जमाने में 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 11-11, 12-12 बच्चे होते थे. पेरेंट्स को पता ही नहीं होता था कि कौन सा बच्चा कहाँ पर, बिकॉज लेकिन आज पेरेंट्स में इतना इमोशनल इनसिक्योरिटी है और जो इतने सारे 10th-12th में हम डिप्रेशन के केसेस देखते हैं. आई गो टू स्कूल्स मेनी टाइम्स, बच्चे का पेपर होता है, सर दर्द मदर को हो रहा होता है, स्ट्रेस मदर ले रही होती है. देखिए हम लोग भी बहुत ब्रिलियंट थे, पढ़ाई में हम लोगों ने भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई की, लेकिन हमारे पेरेंट्स को तो पता ही नहीं होता था कि हम लोगों के क्या सब्जेक्ट हैं, क्या मार्क्स हैं. वो हम पे ट्रस्ट करते थे, वो हम पे विश्वास करते थे, वो अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करते थे. और हमारे पेरेंट्स को होता था कि बस टीचर्स का रेड साइन कोई आना नहीं चाहिए. और पेरेंट्स का इतना डर ही हमारे लिए काफी होता था कि हमारी किसी किताब पे कोई रेड मार्क ना लगे. सो मुझे लगता है गिविंग राइट एनवायरनमेंट, गिविंग राइट एम्बियंस, हर वक्त सारा दिन बच्चों के पीछे पड़े रहना, मुझे लगता है कि जब वो बच्चे कल को बड़े होंगे वो जीवन में ना डिसीजन मेकिंग सीखेंगे, ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखेंगे. और अगर अभी तो उन्हें छोटे छोटे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने हैं, बड़े हो जाएंगे तो दे विल फेस बिगर कॉन्सिक्वेंसेस. एंड विद सोसाइटी, अगर हमारा घर में रिलेशनशिप अच्छा है, जब हमारा घर बहुत सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल होगा, हमारी सोसाइटी के साथ हमारा रिलेशनशिप खुद ब खुद बेटर होता चला जाएगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट इमोशंस, relationships and physical health. Now Sanjay ji will speak about relationship with money, because बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से भी कम नहीं है. संजय जी और मैं जब चंडीगढ़ में आए, हमारे पास कोई पैसा नहीं था. संजय जी 1000 रुपए का कमरा रेंट पे लेके रहते थे एंड आई वाज स्टेइंग इन अ वर्किंग विमेन हॉस्टल. हमने एक एक रुपए की कद्र को जाना है.
बिकॉज जब हमारे पास पैसे नहीं थे, हमें मालूम था हमने चंडीगढ़ में कितना स्ट्रगल किया एक छोटा सा घर बनाने के लिए, एक छोटी सी गाड़ी खरीदने के लिए। ये भी स्ट्रगल था कि पावर विंडो वाली गाड़ी खरीदे कि विदाउट पावर विंडो वाली गाड़ी खरीदे, पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी खरीदे। मतलब छोटे छोटे 2-2 हजार 5-5 हजार रुपए को किस तरीके से हम बचाते थे, किस तरीके से जीवन कॉम्प्रोमाइज का जीते थे। तो ये सारी चीजें हम लोग भूल नहीं सकते। तो जब बहुत सारे लोग कहते हैं इंदु पैसा कुछ नहीं होता, मैं कहती हूँ एक बार ढेर सारा कमा लो और बाद में सारा डोनेट कर दो, दैट इज द बेस्ट थिंग। तो आपको पता चलेगा पैसे की वैल्यू क्या है। सी मनी इज गुड इन हैंड ऑफ गुड पीपल। अगर आपके पास पैसा है और आप कुछ अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली उससे अच्छा ही होगा। सो डेफिनेटली थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एंड मैंने देखा कि बहुत सारे लोग प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग द प्रोग्राम। सो अभी संजय जी बात करेंगे, उसके बाद अगर आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, आप लोग चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं और हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you. Money, important subject, huh? Very, very interesting subject, money. So if you really want to make a lot of money, okay, just keep typing, yes, we want to make a lot of money. जैसा इंदु जी ने कहा कि बहुत लोग स्टाइल से कहते हैं money is not important, okay. I seriously believe कि बहुत important subject है पैसा। आदमी जवानी से बुढ़ापे तक सिर्फ 2 ही चीजों के लिए भाग रहा है, money and success। और बड़े इत्तेफाक की बात है, इन्हीं 2 सब्जेक्ट का कोई टीचर नहीं है ना। हमने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, मुझे अभी भी याद है मैंने H2N2 N नीचे N लिखते थे, फिर 2 लिखते थे, फिर H2O ऊपर लिखते थे। इट इज नॉट प्लेइंग एनी रोल इन माय लाइफ नाउ। अकबर, हुमायूं, कौसिता, थाइन थीटा, ओके गुड, नॉलेज टेकन, बट माय स्कूल मस्ट हैव टोल्ड मी हाउ टू बिल्ड प्रॉफिटेबल बिजनेस। माय स्कूल मस्ट हैव टोल्ड मी taught me how to take care of the stress, how to become better at handling problems, how to face failure, how to be more emotionally strong. ये कभी किसी no one taught me these। ये basic attributes है लाइफ में जीतने के लिए। और कई बार मुझे लगता है कि हमारा स्कूल सिस्टम is doing a miserable job of creating successful leaders, you know। they just want to create followers कि जो बोल दिया बेटा ऐसा होना चाहिए, नहीं बेटे आपके मार्क्स कटेंगे, आपने ना आंसर वैसे नहीं दिया जैसे बताया था आपको। so they just want people to follow, you know। And see, if you want to be somebody in life, okay, if you want to be anybody in life, then no problem, you can merge with the crowd and live life, no problem. But if you want to create difference, okay, so we need to work on our mindset। तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसा important subject है। आप agree करते हैं? if you say agree, just type yes no, तो मुझे पता चलेगा कितनी ऑडियंस को मेरी बातें समझ आ रही है। I might sound very different, okay, I might हम उससे अलग सुन सकता हूँ जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा अलग हो सकता हूं उनसे, बट मेरे रिजल्ट भी अलग है, ओके। सो इफ यू वांट टू हैव डिफरेंट रिजल्ट, नो यू हैव टू एसोसिएट विद डिफरेंट पीपल, ओके। अगर मुझे अच्छा प्लेयर बनना है तो फिर मुझे क्रिकेट प्लेयर बनना है तो मुझे क्रिकेट प्लेयर के साथ हैंग आउट करना पड़ेगा, ओके। सो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और इसका कोई टीचर नहीं है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग स्किल सेट पे रहते हैं, मैं अच्छा साइंटिस्ट बन जाऊं, अच्छा केमिस्ट्री में बन जाऊं, मैथ में बन जाऊं, फिजिक्स में बन जाऊं, आई अंडरस्टैंड। मगर अब ये सोचिए, अगर मैं एक चीज में स्पेशलिस्ट बन जाऊं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, साइंस में, या मैं डॉक्टर बन गया या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, गुड, इट इज अ गुड प्रोफेशन, आई एग्री। बट द प्रॉब्लम नो, अगर सपोज इफ आई एम अ डॉक्टर, सपोज इफ आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सपोज इफ आई एम IT प्रोफेशनल, समथिंग गोज रॉन्ग विद माय जॉब और समथिंग गोज रॉन्ग, I can only be an IT person. But if I'm a normal graduate, I have all the skills, then I can be anyone. मैं कुछ भी कर सकता हूँ लाइफ में। So मेरे को एक लेबल लगा दिया जाता है, now you're IT, now you're an engineer. So I live my rest of the life with that label, and I think good about it. And तो मेरे को एक बॉक्स बना दिया, मैं उस बॉक्स के हिसाब से सोचता हूँ। जैसे एक लेडी सोचती है, मैं हाउस वाइफ नाउ, ओके, I'm a woman, I'm a teacher, so वो उस बॉक्स के दायरे में आ जाती है ना। So this is the reason हमारी, कई बार मुझे तो ऐसा लगता है कि our schooling या हमारा सिस्टम ही तो हमें लिमिटेड नहीं रख रहा। नो, आई थिंक कि वही तो कहीं हमारी लिमिटेशन नहीं है। खैर, एनीवेज, सो I'll discuss this topic, okay। So what our school is teaching us, okay। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल हमें ये सब नहीं सिखा रहा है और अभी बहुत हाई टाइम है कि हम इग्नोर करें इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को, मनी, ठीक।
क्योंकि मेरे को ये लगता है द प्रॉब्लम इज नॉट इकोनॉमी, द प्रॉब्लम इज आवर थॉट प्रोसेस, आवर फिलॉसफी अबाउट मनी, है ना. मनी इज नॉट गुड एंड बैड. मैं हमेशा बोलता हूँ मनी, वेल्थ इज ए माइंडसेट, जैसे एम्प्लॉय इज ए माइंडसेट, बीइंग एवरेज इज ए माइंडसेट. सो चेंज योर बिलीव्स, यू चेंज योर रिजल्ट्स, है ना. सो यू चेंज योर सीड्स, वही बीज से वही फल आएंगे. अगर हम चाहते हैं डिफरेंट फल आए तो हमें बीज चेंज करने हैं. नाउ बीज चेंज कैसे होंगे? बाय जस्ट चेंजिंग आवर बिलीफ. बिलीफ कैसे चेंज होंगे? बाय एसोसिएशन with the right kind of people. You see, my house, my office is full of books. Okay, you'll find every books on wealth creation. When I was vice president Bharti Axa, I used to travel into entire Punjab, entire north with my boss. और वो हमेशा हंसते थे मुझ पे कि whenever you are traveling, you are reading books on wealth creation. वो बोले अगर ऐसे बुक पढ़ के wealthy हो जाते तो आजकल हर कोई अमीर हो जाता. Today I have created multi-crore empire. He is still in job. वो आज भी नौकरी में वर्किंग थ्रू इज EMI. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट दैट व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन वी आर गेटिंग. हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? द मोमेंट वी पास आउट, वी ग्रेजुएट, वी स्टॉप लर्निंग, है ना. आवर स्कूल सिस्टम विल नॉट टीच यू टू बिकम रिच. दे विल टीच यू, दे हैव अ सेट पैटर्न जो सालों पहले था वो आपको दे दिया, एंड दे आर लॉस बॉदर्ड अबाउट योर रिजल्ट. दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर रिजल्ट. ओके, पास हो गया, डिग्री मिल गया, ओके, next batch will come, next batch will come, next batch will come. So you are not learning anything new, क्योंकि जो स्टूडेंट आपका पिछले साल पास हुआ, he read the same books, the teacher was same, last 10 years the same book, same teacher, nothing new. So what is the point of education? Education is that you become creative, you start thinking, you develop a habit of learning is education. Education is not that I teach you and you keep it. Oh, you are educated. See, I gave you 10 books. Oh, you are educated now. No, that's not education. That keeping something which doesn't belong to you. Okay? So, I think education ये होना चाहिए कि मेरे में सीखने की भूख लग जाए, है ना. एजुकेशन ये होना चाहिए मुझे पता चल जाए कि मैं कितना ना समझ हूँ, मुझे ये पता चल जाए कि मैं कितना कुछ और सीख सकता हूँ. ये दिस एक्साइटमेंट विल ऑलवेज कीप मी स्टूडेंट. तो मेरा पहला मैसेज होगा, बी ए लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट. ये गलती मत करना कि हमें सब पता है, क्योंकि इंडिया में, स्पेशली इंडिया, आप किसी को पढ़ने के बाद, कॉलेज से पास आउट होने के बाद उसको कुछ पढ़ाने की कोशिश करो, वेरी वेरी डिफिकल्ट मान. सो चेंज योर बिलीव्स. ओके, सो मनी, हमें अपने बिलीफ चेंज करने पड़ेंगे. लोग कहते हैं मनी इज गुड, मनी इज बैड, और ये वो. सम टाइम आई हियर, जैसे इंदू जी भी बता रहे थे कि बॉस, ओके फाइन संजय जी, यू आर रिच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर, बट मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस. आपने सुना है सब? यू हियर दिस? The famous money cannot buy happiness. My question to all of them. Okay, money cannot buy happiness. What poverty can buy? अमीरी से खुशियां नहीं मिलती, मान लिया. गरीबी से क्या मिलता है बताओ? Right? So I get message on my WhatsApp most of the time. People say, no, good messages. कि I don't want to be rich, but I want to be happy. My question is, why can't you be both? You can be rich and happy also. Why you have to be poor to show that you are happy? You know why people think proud to saying that we are poor? Because most of the people are poor, and people like to associate themselves with more people. Democratic country, no. If more people will be poor, it is good. If more people will say Narendra Modi Prime Minister, he'll become Narendra Modi Prime Minister. So it is not important what is right and wrong. What is important is what more people are saying. So we have to break the thought process. That is the reason 95% people work harder and harder, getting degrees and struggling all life. कितना बुरा लगता है ना, 40-45 साल तक सुबह शाम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, and when you get old, you still working harder for money. You don't have any support system. कितना बुरा लगता होगा उस इंसान को जो 60-65 साल की उम्र में पहुंच गया और पीछे मुड़ के देखता होगा, he has no financial backup, no support system, no creativity, no fun in life. And he was working harder and harder for 40 years of his life. And the worst part, he has produced some kids. They will again go with the same process again and again. So why I'm telling you all this? Because to change, we need to change thought process. पैसे के लिए अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, भावना को बदलना पड़ेगा. हम कितने have you seen, आपने लोगों को आसपास देखा कितने आराम से कहते हुए, नहीं पैसा तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. अरे आप मुझसे लैपटॉप से बात कर रहे हो, मोबाइल से बात कर रहे हो, बिना पैसे के हो सकता है?
मुझे बताइए कौन सी इंसानी एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी है इंसान की जो बिना पैसे की हो सकती है? अभी आप जाएंगे मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, रेंटल पे जाएंगे, मेट्रो पे जाएंगे, कार पे जाएंगे, खाना खाएंगे, कपड़े पहनेंगे, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो बिना पैसे की हो सकती है भाई साहब? So why to feel proud about saying that, oh no, money is not important for us? Alright? Can you live without oxygen? Can you live without money? So if anyone comes and tell me, नहीं अग्रवाल जी, money is not important for me, तो मुझे ऐसा लग रहा था नहीं भाई साहब, मैं तो बिना ऑक्सीजन के भी इस ग्रह पे रह लूंगा भाई साहब. So what I'm trying to tell you guys, I'm not telling कि यही चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि मनी नो, जो चीज पैसे से आ सकती है ना, वो सिर्फ पैसे से ही आ सकती है. सपोज मेरे घर में कोई बीमार है, मैं उसको हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा, फोर्टिस या ओला कहीं भी, वो बोलेगा 5 लाख, मैं बोलूंगा नो, मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट. सी आई हैव 15 years. See, I am a very nice person. See, don't ask for money. I go to temple daily. Will that work, man? No. So be realistic. हमारा लाइफ का फ्रस्ट्रेशन क्या है? हम अमीर होते भी नहीं है, गरीब बनाना भी नहीं चाहते, बीच में लटक रहे हैं. So until and unless we get clarity in life, we don't succeed. ठीक है? I am also student. So it's not that I am also learning, but I'm in love with what I'm learning. है ना? इसने पिछले 5-6 साल जिंदगी के अमेजिंग रिजल्ट दिए हैं, और मैं तो मतलब सुपर एक्साइटेड हूं कि जो मैं सीख रहा हूं उसको अब जो मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, तो आप आगे और लाइफ क्या क्या दिखाएगी नो. सो इट इज गुड. हमें अपना स्कूल सिस्टम, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए ना, पिछले साल एक दिन में 22,000 लोगों की जॉब चली गई, जेट एयरवेज बंद हो गया, कोरोना क्राइसिस हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, है ना. तो कितने और लोग हमें आसपास देखने हैं कि जो सालों पढ़े, सालों मेहनत किए और आज स्ट्रगल कर रहे हैं. कितने और लोगों को हम देखना चाहेंगे जो 40-40 साल के बाद, अंकल लोग रिटायर होने के बाद भी सोच रहे हैं बेटा कोई जॉब है तो बता, और कहते हैं अरे घर में बोर होता हूं ना इसलिए नौकरी पे चला गया. क्या नौकरी टाइम पास करने की चीज है? टाइम पास करने की चीज है पेंटिंग करो अंकल, योगा करो, घूमो फिरो, टाइम पास करो. अरे आई रियली सैल्यूट पीपल जिनको टाइम पास के लिए भी जॉब पे जाना है. अरे व्हाट अ टाइम पास यार, है ना. वो बॉस की गाली भी सुनते, अरे नहीं मेरा टाइम पास है, बॉस की गाली सुनता हूं. सो आई थिंक वी नीड टू बी वेरी क्लियर. सो सिंस टॉकिंग अबाउट मनी, तो मुझे लगता है कि मनी, अगर आप सिंपल फार्मूले अपनाएंगे तो यू विल अट्रैक्ट मनी. सिंपल माइंडसेट चेंज, थॉट प्रोसेस एंड एक्शन चेंज करेंगे तो यू विल अट्रैक्ट मनी. मनी इज ए वेरी गुड बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एक्शन, बट इफ इट इज एंटायरली योर पॉइंट ऑफ फोकस, then you will get frustration because you are not focusing on the seed, you are focusing on the fruit. So we will change the thought process about money. Money is good. Money is really, really very good. Okay? First we change this. Second, we understand we have to ask the right question. पहला thought process ये. दूसरा, security. Security is myth. Don't look for security. 90% average people life में परेशान है, स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वो सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं. आई एम आस्किंग ऑल द ऑडियंस हियर, आई एम आस्किंग ऑल माय फ्रेंड्स हियर, मुझे बताओ धरती पे क्या चीज सिक्योर है? कहां सिक्योरिटी मिलेगी बताइए? टेल मी वन जॉब, वन प्रोफेशन, वन थिंग ऑन दिस मदर अर्थ व्हिच इज सिक्योर. दिस इज अनदर प्रॉब्लम. दिस इज अनदर प्रॉब्लम. 90% लोग वो ढूंढ रहे हैं जो धरती पे है ही नहीं, सिक्योरिटी. और जो चीज है धरती पर उसको कोई नहीं देख रहा, दैट इज अपॉर्चुनिटी. सो रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी, एवरेज पीपल लुक फॉर सिक्योरिटी. दैट्स द रीजन दे कीप स्ट्रगलिंग रेस्ट ऑफ योर लाइफ. सो हमें ही अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए हमें चेंज करना है. सो मैं हमेशा बोलता हूं अपनी स्लाइड में, financial growth is your willingness to give up what you are right now. हमको वो छोड़ना पड़ेगा जो अभी हम हैं, वो बनने के लिए जो हम बन सकते हैं. जैसा कि कल परसों मैंने किसी को फोन पे कहा, मैं जैसा था अगर मैं वैसा ही रहता तो मैं ऐसा नहीं होता जैसा मैं हो गया हूं. I hope you understand this, okay? Until unless you change, nothing get changed in your life. So Robert Kiyosaki की बुक में I quote him, a poor man is poor not because of his circumstances. He is poor because he has not decided to become rich.
एक आम आदमी आज भी आम आदमी और आम आदमी की जिंदगी इसलिए जी रहा है क्योंकि उसने दिल से अमीर बनने का ठाना नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि अगर अमीर क्या करना है, देखो सिंपल सादा होना चाहिए। मैं आपको आज एक लाइन बोलता हूँ, प्लीज नोट इट डाउन। अमीर होना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका हक है। यू डिजर्व टू लिव अ रिच लाइफ, यू डिजर्व टू लिव ए अबंडेंट लाइफ। जब अपना घड़ा भरा होगा तभी वो दूसरे के लिए झलकेगा। पीपल who are themselves are struggling for money will not contribute in the growth of others. Yes. Can never focus on the growth of others. Only a rich, abundant mind will focus on कि चलो my पड़ोसी should also do well. My पड़ोसी should also do well. Even if a normal person goes to temple, वो भक्ति भाव से टेम्पल नहीं जाते हैं, वो मांगने जाते हैं। सो अगर आपकी गाड़ी रोड पे रुकती है और बैगर आता है, आपको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। उसी तरह से गॉड को भी नहीं अच्छा लगता होगा जब हम सब जाके बोलते हैं भगवान कुछ कर दे, कुछ कर दे। गॉड ऊपर से बोलता होगा, आई गिव यू टैलेंट, आई गिव यू रिसोर्सेस, I give you ability to make money. If you are not using ability, you are abusing my gift. So if you are abusing my gift, how I can make you wealthy? So दोस्तों, पैसा बहुत अच्छी चीज है। पहले अपने सारे बिलीफ में क्यों बोल रहा हूँ? What you can do without money? Tell me. Suppose you have a girlfriend. Suppose आपके घर में कोई है, आप उसको सुबह शाम बोलते रहो, oh he is not important to me, he is not important to me. एक दिन वो आदमी आपको छोड़ के चला जाएगा। तो आप पूरे दिन यही बोलते रहते हो, money is not important to me, money is not important to me, and people feel proud by telling this, and one day money will be gone because that is what you have been telling all life, right? So please understand, a poor man is poor not because of circumstances, because he has not decided to be rich. अमीर होना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Financial surplus in the hand of good people will do good for the society. Financial surplus in the hand of bad people will do bad for the society. अभी प्रॉब्लम क्या है, जितनी भी अच्छे लोग हैं, वो आर गुड हार्टेड, वंडरफुल पीपल, लवली पीपल, वो कहते हैं नहीं हमें ज्यादा नहीं चाहिए, कम में कर लो। एंड ऑल द स्काउंडर्स, all the cunning people on this earth, they are super excited, they are supercharged, they are super ambitious. So all the money goes to bad people. They will create more havoc, they will create more troubles, they will create more bombs, they will create more wars because they have more money. But the money in the hand of good people, wo shayad or anath ashram khole, he will donate some money. So it is very good that we should think positively about money. So I'm going to share some information with you. As Induji said, there is a difference between information and transformation. Information is available. अभी आप गूगल पे जाके टाइप करो how to be rich and successful, you'll get 1010 articles. You will get around 5000 YouTube videos. Okay, but still we are struggling financially. So थोड़ा सा अपने आप को align करते हैं and we'll understand कि what is need. So first I said there is no dearth of money. पैसे की कोई कमी नहीं है। Fish in water is thirsty. वो fish की प्रॉब्लम है, पानी चारों तरफ है। My first example, बारिश हो रही है, ग्लास रख दिया, एक ग्लास पानी मिल गया, तो प्रॉब्लम बारिश की नहीं थी, ग्लास की साइज की थी। इसी तरह से धरती पे दौलत की कमी नहीं है, अपने थॉट प्रोसेस की कमी है। अगर हम जो काम कर रहे हैं उससे हम लाखों करोड़ों नहीं कमा रहे, एंड इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग, देन हु नीड टू चेंज, द वर्ल्ड इकोनॉमी or the person? Who need to change? You will wait the world economy to change? You need to change, guys. So first, be focused on change. Second, there is enough wealth available. Third, security is myth. Love uncertainty. अगर uncertainty में जाओगे तभी कुछ अलग होएगा. Uncertainty can be growth also. I left my high-paying job. I was on the package of 24 lakh. I said goodbye to my job. I went into uncertain. Today I make that amount of money in 2 months. You know, because I changed. I loved uncertainty. Second thing I would like to share, change your thought process. अब thought process आएगा कैसे? आपको conscious effort करने पड़ेंगे. आपको right question पूछने पड़ेंगे. मान लो if you want to buy something or if you want to buy a car or a house, तो पहला थॉट प्रोसेस आता है, ओ आई कैन नॉट अफोर्ड इट। आज के बाद जिंदगी में कभी भी आपके माइंड में ये आए, आई कैन नॉट अफोर्ड इट, सो आई कैन नॉट को आप रिप्लेस कर दीजिए हाउ कैन आई।
ये छोटा सा चेंज आपकी जिंदगी में बदलाव ला देगा यार. I cannot afford it should be replaced by how can I. Suppose I saw a top model Jaguar and I say, oh, I cannot afford it, it is 72 lakh. तो मेरा दिमाग बंद हो जाएगा, सोचना बंद हो जाएगा कि अब क्या सोचना, तो कर ही नहीं सकता. मगर if you ask the right question, okay, how can I afford? Okay, 6 months I can make so much money from here, so much money from here. If I pay this much down payment, in another 18 months I can generate. So you are working. So if someone is making 2 lakh rupees a month, you ask the right question, how I can make more money? Fifth point, you can only make more money by helping more people. As an employee, मैं सिर्फ अपने लिए सोचता था, अपनी growth के लिए सोचता था. As an entrepreneur, I think for developing other people. You know, as an employee, I used to look for security. Now I look for opportunity. As an employee or as a normal average person, we are savers. और रोबोटिक के साथ हमेशा कहते हैं सेवर्स आर लूजर. अगर आप अपना पैसा बचा रहे हो, इफ यू आर सेविंग मनी, यू आर लूजिंग मनी. आप बैंक में पैसा रखे जा रहे हो, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, पैसा कम होता जा रहा है, यू आर जस्ट लूजिंग मनी. सी, अगर आप अपने पैसे को यूज नहीं करते हैं, जस्ट बैंक में रख रहे हैं, यू शुड नो हाउ द गेम ऑफ मनी इज प्लेड. So you are saving money in your account. Rich people will come take loan from government and bank. They will use that money. They'll make crores of money, and you will be charged every time you withdraw your own money. Okay? So unused money value khatam ho jata hai. Unused talent. Suppose I'm a very good badminton player. If I don't play badminton for a couple of years, my efficiency goes. Potential, unused potential. गॉन. अगर कोई मशीन है अच्छी, उसको यूज नहीं करें डेली, तो वो काम की नहीं हो जाती है, बेकार हो जाती है. इफ यू डोंट यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपर्ली, इट्स गॉन फॉरएवर. इसी तरह से इफ यू हैव नॉलेज, बट इफ यू डोंट यूज योर नॉलेज, it becomes burden, because you read so many things, you get motivation from so many things, and you don't do anything about it. The only thing you'll get is more frustration. Okay, so we need to change, bring some change. Now, how to bring some change in thought process? What is the difference between rich people and poor people? Sirf mindset. Rich people would like to associate with rich and successful people. जैसी संगत वैसी रंगत. हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे रह जाएंगे. अभी मैं शराबियों के साथ रहूंगा तो शराबी हो जाऊंगा, जुआरियों के साथ रहूंगा तो जुआरी हो जाऊंगा. So it is my choice with whom people I'm spending my time. जब मैं एम्प्लॉय था तो हम सब आपस में एम्प्लॉयज को ढूंढते थे, अरे इतना इंक्रीमेंट हो जाए, इतना इंक्रीमेंट हो जाए. मैंने सारे एम्प्लॉयज से कट किया, बिकॉज आई वांटेड टू क्रिएट एन एग्जांपल फॉर माय फैमिली. टुडे मेरे बच्चे हैं, दे डोंट थिंक लाइक एम्प्लॉय. ओके, दे प्लान बिग. और जो एवरेज पीपल है, दे विल ऑलवेज टॉक नेगेटिव अबाउट सक्सेसफुल पीपल एंड रिच पीपल. जो वो खुद बनना चाहते हैं उसके लिए वो नेगेटिव बोलते हैं. अगर मैं क्लास में फर्स्ट आना चाहता हूं और मैं ये बोलता रहूं जो फर्स्ट आते हैं वो पागल होते हैं, सो ये विरोधाभास हो गया ना, ये कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट हो गया ना. नाउ द यूनिवर्सल पावर इज कंफ्यूज्ड व्हाट टू गिव यू. ओके, सो इट्स लाइक ड्राइविंग ए कार, और आप एक्सीलरेटर पे भी पैर डाल रहे हो और ब्रेक पे भी पैर है, तो हैव वेरी क्लियर. ओके, रिच पीपल लुक फॉर अपॉर्चुनिटी एंड नॉर्मल पीपल टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स. रिच पीपल नो, यू नीड टू बिलीव दैट वी क्रिएट आवर ओन लाइफ. मैं अपनी लाइफ खुद बना रहा हूं यार. अगर मैं सक्सेसफुल हूं, रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, मैं फेलियर हूं, रिस्पॉन्सिबल मैं हूं. दैट्स इट. और एवरेज पीपल क्या कहते हैं, लाइफ में ये हो रहा है यार, ये कोरोना हो गया ना यार, ये गवर्नमेंट होगी ना यार, यार हम यहाँ पे रहते हैं ना यार. अब बोलते आपके पास हजारों सक्सेस स्टोरीज हैं जिनके पास लाइफ में कुछ नहीं था, कुछ किया था. मैं ये नहीं कहता कि हम सब अंबानी बन जाएंगे, मगर एटलीस्ट अ पॉजिटिव डेवलपमेंट इज मच बेटर देन जस्ट स्क्रीमिंग एंड टॉकिंग. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल प्ले द गेम टू रिच, टू विन. रिच पीपल प्ले टू विन and average people play not to lose. देखिए फर्क आएगा छोटी छोटी बातों में. मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट दे रहा हूँ. we probably will do such programs regularly, है ना. most of the people, rich people are committed to become rich. The rest of the people are interested to become rich. Okay, they are very, and most people think big, normal people think small, and rich people admire rich people. They believe in collaboration, you know. People, average people want to get on time, कि एक महीना हो गया, एक महीने का इतना मिलना चाहिए. Rich people want to get paid on results. See, 3 वर्ड्स बोलता हूं आपको मैं, आपका थॉट प्रोसेस बदलेगा.
एक वर्ड है सैलरी, सबको बहुत पसंद है, व्हाट्सएप पे आते हैं कि सैलरी गॉट क्रेडिट इज ए मोस्ट पावरफुल वर्ड। दूसरा वर्ड होता है प्रॉफिट, तीसरा वर्ड होता है कैश फ्लो। कैश फ्लो इज developing a system or an organization which gives you cash flow with or without you. If you want to create wealth, cash flow is the word you should work on. कैश फ्लो। अब देखिए, मैं दो लोगों को आपके साथ बिठाता हूं, एक शख्स जो सालों से नौकरी कर रहे हैं, एक शख्स जो बिजनेस ओनर है। मैं आपको बताता ही नहीं कि उनका क्या प्रोफेशन है, वो क्या करते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट पे, दुनियादारी की, क्रिकेट की, किसी भी सब्जेक्ट पे उनसे 5 मिनट बात कीजिए, आप 5 मिनट बाद बता देंगे कि कौन नौकरी करने वाला आदमी है, कौन लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है और कौन सक्सेसफुल बिजनेस ओनर है। यू नो व्हाई? द वर्ड्स दे यूज, द अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, यू विल कम टू नो। उनके वर्ड्स अलग हैं, ठीक है। लोग सोचते हैं हार्ड वर्क, दे थिंक सिस्टम, दे थिंक मंथली सैलरीज, दे थिंक हाउ टू क्रिएट सिस्टम, है ना। सो if you want to create wealth, we need to create wealthy mindset, okay? And rich people are ready to learn. They are ready to learn, they want to learn more. Average people, they know everything. It is very difficult to teach an average man how to succeed in life, but you get any successful man, he's trying to learn more. That is the basic characteristic. So if you don't learn, you don't earn. I cannot teach everything in one day, and I cannot help everyone. I can only help people who are willing to help. Okay, I'm not God, I'm a learner, I'm a student, I'm learning, and it is an opportunity for me to share things which I'm learning with you. I'm blessed that I could share this with you, and I am blessed with all the people who are still staying with us. अभी तक आप हमें सुन रहे हैं, it means God wants you to listen to all these things. हम दोनों committed हैं, हम चाहते हैं कि हम लोगों की जिंदगी में एक जरिया बने, एक प्रोसेस बने आपकी लाइफ में चेंज होने के लिए। बिकॉज अगर हमें कोई नहीं सिखाता तो आज भी हम हस्बैंड वाइफ किसी जॉब में, किसी क्यूबिकल में, किसी ऑफिस में स्ट्रगल कर रहे होते और गवर्नमेंट को, देश को, सबको ब्लेम कर रहे होते। सो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल फॉर अ वंडरफुल लाइफ। दिस इज माय नंबर एंड इंदूज नंबर। इंदू normally does immense work in preventive health care. We have a huge network in 8 states of India, no? आप मोटिवेशन लीजिए बाबा रामदेव से, है ना। Why to talk negative? No, motivation is no degree, no qualification, no management, no so-called high funda English words. Ordinary person created system. What he does, he created system. You know, उन्होंने बजाय एक जगह क्लिनिक खोल के सुबह शाम, तो his income is not generated dependent on him. उन्होंने आयुर्वेदा के काउंटर खोल दिए. We are doing the same thing. We have created a chain of wellness center across country. So today my income is not dependent on my physical presence. That is called wealth creation, and no school, no university teaches you wealth creation. Our school teachers are, everyone is master to teach you how someone will open a factory, someone will open a university, someone will start a business. You go become top ka employee. This is called MBA. But our MBA are not teaching people to become courageous business leaders, to how to build business. So there are many more things I would like to talk about. Money, you know, money is a fantastic thing, and if you are a good person, make sure it is a moral responsibility. See, जितने भी नोट प्रिंट होने हैं ना, उतने ही हैं. तो अगर सारे अच्छे लोग सोचेंगे मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मनी कहां जाएगा? गलत लोगों के हाथ में जाएगा. गलत लोगों के हाथ में जाएगा तो दे डू गलत फॉर द सोसाइटी. हमारा कौन सा भगवान है जो गरीब थे? बताइए. हम सोचते हैं पैसा अच्छा नहीं होता. यू गो टू टेंपल, आप सबसे पहले पैसा चढ़ाते हो. आपके घर में छोटे बच्चे को कोई पैसा देता तो कहते हो वाह, बच्चे को पैसे मिले, वाह वेरी गुड. और जब आपके पैसे कमाने की बारी आती है तो आप ही कहते हैं नो, मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट. गॉड, वी आर ब्लेसिंग ऑफ गॉड. हम भगवान के बच्चे हैं, और कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसके बच्चे दर दर की ठोकर खाएं, धक्के खाएं. ये जो स्ट्रगल हो रहा है पैसे का, लाइफ का, फाइनेंशियल का फ्रस्ट्रेशन है, ये भगवान की देन नहीं है, ये हमारी कलाकारी है. हमारे थॉट प्रोसेस, हमारा सोचने का तरीका, हमारा काम करने का तरीका हमें धरती की सुख समृद्धि से दूर रखता है. इफ यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक लॉज ऑफ लव, गिविंग, शेयरिंग, बीइंग काइंड, बीइंग गुड, trust me, you're going to live an awesome life on this earth. I'm thankful to Indu. I'm thankful to my parents. I'm thankful to my family. I could experience this awesome life. Develop habit of reading. And जब हम पढ़ते हैं किताबों को तो it's like spending time with wonderful people जो आपको वैसे धरती पे नहीं मिलेंगे. So be ready to transformation.
The idea is not to give you knowledge and bombard you with the knowledge. आपके पास knowledge बहुत है. The core of our heart, we want transformation should happen. You should, once you go out from my webinar, you should be a different person. It is possible. So anything, if anyone want to ask us anything, just feel free. And there's so much, there's so much to us. No, we would like, you can type in Zoom. You can type on. If you have any questions, there are a lot of people on YouTube Live, and so if you have any questions, you can just type, and definitely we will be happy to answer. Otherwise, we will just say, I'm getting messages on my WhatsApp also. Stay connected, and definitely आज का जो ये एक वेबिनार था, ये एक हमारी तरफ से एक जेस्चर था, एक एफर्ट्स था कि कुछ लोगों तक ये हमारा मैसेज पहुंचे. हम लोग काफी बड़े-बड़े प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं. इस तरीके से लैपटॉप के आगे बैठ करके हम लोगों को ट्रेनिंग करने का आदत नहीं है. वी आर ऑल्सो लर्निंग दिस हाउ टू डू इट विद टेक्नोलॉजी. क्योंकि जब हम लोग खड़े होकर, how to create wealth. Yeah. But we know how to create wealth. Yes. So this was an endeavor कि हम अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें. So if you have any questions, any queries, you can type it in the chat box. अभी भी पूछ सकते हैं. We will be happy to answer your queries. And otherwise also our numbers are there. You can get connected with us. And एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, हमारे काफी दिन से हम सुन रहे हैं एक आत्मनिर्भर भारत को हम बनाएं. एक आत्मनिर्भर भारत को बनाने से पहले हम पहले खुद आत्मनिर्भर बने. आज बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस के टीचर्स हमारे साथ हैं. मैं सिर्फ एक ही मैसेज कहना चाहूंगी, हम अपने बच्चों को केवल नौकरी के लिए तैयार ना करें, हम अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार करें. और मुझे लगता है कि देश में बिजनेस ओनर्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ कि हर इंसान सोचता है कि मैं अपने बच्चे को ब्यूरोक्रेट बनाऊं. मुझे लगता है कि बिजनेसमैन जब वो पैसा कमाते हैं, देश के लिए टैक्सेस भरते हैं. एक बिजनेस ओनर लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करता है. एक बिजनेस ओनर जिसका बिजनेस चलता है, वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है. तो मुझे लगता है इंडिया शुरू से ही सोने की चिड़िया था. इंडिया पहले से ही एक एंटरप्रेन्योर. लेट्स बी इमोशनली स्ट्रांग, लेट्स बी फिजिकली स्ट्रांग, एंड लेट्स क्रिएट फाइनेंशियल अबंडेंस इन आवर कंट्री. कोई देश हमें कभी गरीब कहे ना. हम सब लोग अगर हर परिवार अमीर बनने की ठान ले, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इंडिया विल बी अ वेरी वंडरफुल एंड इंडिया विल बिकम अ वेरी वेरी रिच कंट्री. सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. Keep shining, keep growing, keep creating positive impact in people's life. Okay, and we are super excited to be with you. Thank you for spending time with us. Thank you, thank you. Rajni Kalsi said, average people want security and good people want opportunity. Yes, Rajni ji, pleasure. आप मेरे Facebook पे, मेरे Instagram पे देख सकते हैं. I keep sharing posts which are developing and on dependent on the mindset. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you everyone for joining this webinar. Thank you so much.